الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. إلا الله لا إله إلا الله الله वाहिद यकता है अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस तन्हा है कोई ना उसका हमता है कोई ना उसका हमता है एक ही खुद सब की सुनता है ला इलाहा इल्लल्लाह. I'm also the fellow of Institution of Engineers Pakistan and recently working as chairman IIT Gujranwala Center. As already Mr. Khwaja Sahab ने बताया कि Institution of Engineers was founded with the blessing of father of nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in 1948 with headquarters at Dhaka in 1972. The headquarters was shifted to Lahore. The name Institution of Engineers Pakistan was named and it consulting engineering services inspired by the Central Asian and South Asian countries whose name ends with N, such as Pakistan, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan. Small and medium scale housing societies, underground electrification design, powerhead electrification design, design book preparation, approval and construction. Single and three-phase electrical wiring design book for houses, commercial plazas and industries. CCTV camera with complete security system, standby power
and building management system installations. Now I come to my topic introduction on waste to energy. In 2016, the world generated an estimated 2 billion tons of municipal waste, and this is projected to reach 3.4 billion tons by 2050. Around 44% of global waste are categorized as food and green waste, while the other 38 are dry, recyclable items such as paper, cardboard, plastic, glass and metals. The other 18% includes rubber and leather, wood and others. It is expected that the amount of waste being generated will continue to increase due to economic development, population growth. Can be classified according to their states. तो 3 टाइप्स हैं वेस्ट की, जो है ना, सॉलिड, लिक्विड और एयर. सॉलिड वेस्ट कैन बी बोथ ऑर्गेनिक एंड, इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो न सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए बल्कि ह्यूमन के लिए भी, जो है ना, वो एक बहुत बड़ी थ्रेट होगी. Such as agricultural processing and many types of manufacturing. Municipal solid waste can be both organic and inorganic. Municipal solid waste is generated at household, offices, shops, schools, hospitals, hotels and other institutions. Major components are food, paper, rags, metals, tile, construction, debris, glass and hazardous waste such as light bulb, batteries. ये electrical waste में जो चीजें आती हैं, computer items हैं. Household waste is generated in the operation of household activities. Commercial waste consists of waste from areas where business or trade is conducted. This may include business relating to sports, recreation, education or entertainment, excluding household, agriculture and industrial sectors. Construction and demolition waste is generated from the building industry. The debris range from insulation, electrical wiring, rubber, wood, concrete and bricks. Composition of solid waste. If all municipal waste is monitored, sorted and categorized, humanity could recover more energy and recycle more materials. जिस तरह अब इस्लामाबाद में, जो है ना, आपको पता है कि जो ये हमारे पास पेट बॉटल्स है, जो है ना, इनसे फर्स्ट प्लास्टिक रोड, जो है ना, वो बनाया गया है. फूड एंड ग्रीन वेस्ट इज द लार्जेस्ट वेस्ट कैटेगरी विच कॉन्स्टिट्यूट्स 44% ऑफ ग्लोबल वेस्ट. Other recyclables, e.g. paper, cardboard, plastic, glass and metals follow at 38%. The income rises among countries. तो अभी जो मैंने आपको बताया, तो ये एक, जो है ना, चार्ट की फॉर्म में, जो है ना, ये प्रेजेंट किया गया है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को. तो इसमें आप देखें तो जो फूड और ग्रीन आइटम्स हैं वो 44% है, ग्लास 5% है, मेटल 4% है, पेपर कार्डबोर्ड 17% है, रबर एंड लेदर इंक्लूडिंग प्लास्टिक 12%, वुड 2% और अदर्स, जो है ना, वो 14% है. अब सेकंड इंडस्ट्रियल सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है. वेस्ट अंडर दिस कैटेगरी इंक्लूड पेपर वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग मटेरियल, पेपर, ग्लास, स्टोन, ceramics. Agriculture waste and residue those are left during agriculture production. Some of the waste are produced as fertilizer, while a substantial amount remains unused. Agriculture waste are often disposed through uncontrolled burning in the field or dumped in the open areas or in waterways. तो एग्रीकल्चर वेस्ट भी पाकिस्तान में, आपको पता है कि बहुत बड़ी थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए. स्पेशली राइस की कटिंग के बाद जो उसका वेस्ट है वो उसी खेत के अंदर, जो है ना, वो जला दिया जाता है, जो बाद में, जो है ना, मेजर काज बनता है स्मोक के लिए, जो है ना. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो सबसे पहली जो प्रैक्टिस है, ओपन
डंपिंग है। ओपन डंपिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशली इन लो इनकम कंट्रीज। तो पाकिस्तान में भी आपको पता है जो वेस्ट है वो हम जो है ना वो ओपनली डंप कर रहे हैं। उसके लिए मुख्तलिफ साइट्स जो है ना एक्वायर की जाती हैं और फिर वहाँ जो है ना वो डंप जो है ना वो कर रही हैं। तो इसके लिए आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो है ना कुछ अरसे से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई गई हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है ना एक वाट पावर भी जो है ना वो किसी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो है ना वो जनरेट नहीं की वेस्ट से। वेस्ट इज often openly burned at the dump site itself and coastal areas are dumped along the shoreline or into the sea। तो दुबई में भी इसी तरह जो है ना मैं गया था, वहाँ देखा तो उन्होंने अलग से साइट्स बनाई हुई हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने तुर्की विजिट किया हुआ तो तुर्की भी जो है ना वो वेस्ट टू एनर्जी में जो है ना वो लीडिंग में जा रहे हैं। इसके बाद है लैंडफिल। Landfills are the burial grounds of municipal solid waste. Landfills are often established in abandoned areas. If properly designed and well managed, it can be considered as an effective and inexpensive method of waste disposal. However, poorly designed or poorly managed landfills can have adverse effect on the environment. Compositing. In low-income countries, organic materials constitute over 50% of the daily mass of waste. Compositing is a viable option where there is sufficient land or organic materials are well stored. उसके बाद fourth number पे है thermal waste treatment. Historical development of thermal waste treatment facilities have been affected by a number of factors, including high capital and operating and maintenance costs, community objections, and government's regulations on emissions. Solid waste management global scenario. 2 billion tons of municipal solid waste were generated in 2016. By 2030, it is projected to reach 2.6 billion tons and will eventually increase to 3.4 billion tons in 2050. Close to half of the world waste, 43%, came from East Asia and Pacific, Central Asia and Europe. East Asia and Pacific has the highest contribution among the world's regions, generating a total of 468 million tons और 23% आगे के फिगर में भी दिखाया गया। Meanwhile, the Middle East and North African region produced the least, having a share of only 6%. World has an average waste generation of 0.74 kgs per capita per day. यानी कि जो पर पर्सन या है जो वर्ल्ड में जो है ना वो ये डिफाइन किया गया है वेस्ट का, तो ये तकरीबन 0.74 नियरेस्ट टू 1 kg ये बन रहा है। विद इंडिविजुअल कंट्रीज waste generation ranging from 0.11 kg to 4.5 kg per capita per day. Waste composition will change. Low and middle income countries generate around 50% of food and green waste, while high income countries produce only 32% of this waste. Organic waste countries may only 32% in high income countries. जो है ना वो लीडिंग पे है। उसके बाद यूरोप है, साउथ एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है। तो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में सबसे कम जो है ना वो रेशियो है। कंबाइंड हीट एंड पावर फैसिलिटी है, यानी कि आप सर्दियों में वहां से हीट भी ले सकेंगे और इसके अलावा आप जो है ना वो पावर या एनर्जी भी ले सकेंगे। मैकेनिकल है, उसमें मैकेनिकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। उसके बाद आप देखें तो थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, फिर बायोकेमिकल है। तो थर्मल में देखें तो सबसे पहले डायरेक्ट कंबशन है। डायरेक्ट कंबशन इज द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर बायोमास कन्वर्जन, स्पेशली फॉर जनरेटिंग हीट एंड स्टीम।
It burns biomass in the presence of oxygen. A biomass combustion facility can produce steam, electricity, or both through direct firing. Combustion technologies to convert renewable biomass fuels to heat and electricity uses similar process if using fossil fuels. Biomass fuel is burned in a boiler to produce high pressure steam. प्रेपरेशन एंड प्रोसेसिंग है, इसमें सॉर्टिंग होती है इसकी जाके। फिर आप देखें तो आगे बॉयलर के अंदर जो है ना, इसको जो है ना बॉयल किया जाता है, हीट इसको दी जाती है, यूज किया जाता है और एग्जॉस्ट को जो है ना एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है। तो आप देखें तो इसमें स्टीम जनरेट होगी, स्टीम टरबाइन से जो है ना वो आप जनरेटर को कपल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और कंडेंसर जो है ना जो आपकी स्टीम बच रहती है उसको दोबारा वाटर में कन्वर्ट करके तो दोबारा सिस्टम के अंदर जो है ना वो रीयूज किया जाता है उसको। सिंगल स्टेज मैस बर्न एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्लांट। वन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कंबशन इज ऑफन सिंगल स्टेज मैस बर्न from waste plant is burning of waste in a controlled process to reduce the volume and mass of municipal solid waste to be landfilled and to render it chemically inert. It also enables recovery of energy, minerals and metals. Minimum calorific value of the waste is required to enable a thermal chain reaction and self-supporting combustion. तो ये एक ओवरव्यू दिया गया है आपका सिंगल स्टेज मैस बर्न एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। तो इसमें आप देखें एक तो कंडेंसर है, आपकी टरबाइन है, जनरेटर है। तो वेस्ट में आप देखें तो फ्लूइडाइज्ड बेड आपके पास EFW involves the uniform conversion of waste through a bed of sand which behaves as a fluid when heated। 3 नंबर पे है रोटरी किलन। थर्मोकेमिकल टोरिफेक्शन है, उसके बाद गैसिफिकेशन है, लिक्विड एक्शन है, उसके बाद बायोकेमिकल में फर्मेंटेशन है, एनारोबिक डाइजेशन है। अब मैं आता हूँ 2D पॉइंट जो है ना, वेस्ट टू एनर्जी पोटेंशियल इन पाकिस्तान। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान the amount of solid waste is increasing due to rapid urbanization and economic growth, limited financial resources and lack of data availability about the amount and composition of solid waste are posing difficulties to regulatory bodies towards proper planning of solid waste management system in big cities. Also, solid waste generation and characterization are essential parameters that affect the environmental sustainability. In 1996, population of Pakistan was 160 million, with 35% population living in urban areas, and total waste generation rate in urban areas of Pakistan was 55 tons per day. By the end of 2014, the waste generation in Pakistan was as high as 75,000 tons per day. However, the current population has increased to 196 million people, which is pushing the boundaries of cities and indicating higher waste generation amount. This increasing amount of solid waste is one of the most daunting challenges to regulatory authorities to maintain clean cities. Economic growth, urbanization, demographic growth, and changing lifestyles are the key reasons behind increase in municipal solid waste generation in Pakistan. तो ये टेबल में पाकिस्तान के जो 10 मेजर सिटीज हैं उनमें आप वेस्ट जनरेशन में देखें तो कराची टॉप पे है, सेकंड नंबर पे लाहौर है, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा, पेशावर और कोयटा। तो इनमें पॉपुलेशन के अगेंस्ट जो है ना जो सॉलिड वेस्ट जनरेशन पर डे है वो टन्स में है। तो पाकिस्तान में जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जो कंपोजिशन है उसमें आप देखें एश, ब्रिक, डर्ट 18% है, ग्लास 6% है, टेक्सटाइल 2%, कार्डबोर्ड 7%, फूड वेस्ट
30% leather 1, paper 6%, plastic 9, rubber 1%, wood 2%। तो इन सबको मिला कर देखें तो अभी मैं आता हूँ केस स्टडी गुजरांवाला पे। तो ये मैंने एक रिसर्च पेपर था, ये गुजरांवाला सिटी पे जो है ना ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उस पे था। गुजरांवाला इज वन ऑफ द पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ एंड इज लोकेटेड एट 32.1 डिग्री नॉर्थ, 74.9 degree east. Gujranwala is 2 to 6 meters above sea level. Gujranwala city is the 5th biggest city of Pakistan and comprised of 7 towns. Total population of the city in 2007 was, तो ये आप देखें तो पॉपुलेशन जो है ना वो जो 2007 में थी 1,41,05,711 पर्सन्स थे। तो 2017 में आप देखें तो ये तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट डबल हो गई है। एरिया ऑफ द सिटी इज अबाउट 238.1 किलोमीटर स्क्वायर। गुजरांवाला इज ए मेजर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ पंजाब। गुजरांवाला शेयर्स इट्स बाउंड्री विद वजीराबाद इन नॉर्थ, Nashara, Virka and Kamoki in south. Gujranwala industrial areas have numerous textile mills, crockery manufacturing and large agricultural processing plants such as rice plants, ceramics. After Gujranwala waste management company commencement of operation, you see that जगह जगह से म्यूनसिपल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो फुल ऑफ एनर्जी है और इस एनर्जी को पैदा करे और इसको इस्तेमाल करें। अब ये हम इंजीनियर्स लोग जो है पता नहीं मुझे माइक भी दिया गया, आवाज़ एंड तक पहुंच रही है कि नहीं आ रही है। इंजीनियर्स बड़े सिंपल माइंडेड मासूम से लोग हैं, सारे तो नहीं होते वैसे मगर मैनी ऑफ अस मासूम से लोग हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और कोई प्लांट पे लगा है, कोई किसी जगह लगा हुआ है, कोई वापडा में है, कोई कहीं है। ये सब महसूस करते हैं कि नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है, एनर्जी मैनेजमेंट नहीं हो रही, एनर्जी मैनेजमेंट नहीं हो रही। और हम एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, हमारे जो यूनिट जो कंज्यूमर के ऊपर जो बिल आता है बिजली का वो अफोर्डेबल नहीं रहता। सो इसका कुछ करना है। दूसरा ये कि जो हम भागते हैं और जाकर IMF से कर्जे लेते हैं, बहुत हमें नुकसान आता है, वो रियल प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है। उसके बाद क्यों ना हम कुछ करें कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ स्टैंड हो, हमें किसी से कर्जे लेने की ज़रूरत ना हो। और ये जो वेस्ट जाती है, बिजली वेस्ट होती है, थेफ्ट होती है, ट्रांसमिशन के दौरान वेस्ट होती है, ये जो मुख्तलिफ महकमे बने हुए इनकी आपस में डिस्प्यूट्स की वजह से वेस्ट होती है। तो इसका कुछ करें। तो ये एजाज साहब की जो बातें हमने सुनी है, माशाल्लाह, ये कहते हैं कि आपके जो सॉलिड वेस्ट है उसको आप ज़ाया न करें, उसको इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताऊँ, लाहौर शहर में 2 लैंडफिल साइट्स करते हैं, ईच साइड। हम कुछ भी नहीं करते। मैं गया हूँ वहाँ पर और मैंने बाहर से बुलाया भी है, अमेरिकन को बुलाया था मैंने उसको साइट दिखाई। वो कहता है कि ये सारी जो मीथेन भरी हुई है और सैटेलाइट की पिक्चर्स अगर आपने देखी हो, लकोडेयर के ऊपर जो सैटेलाइट ने पिक्चर दिखाई है, मीथेन से भरा हुआ और तोफन फैला हुआ। इस तरह से हमने लैंडफिल साइट्स जो है ना वो मेंटेन करके रखी हुई है। सो इंजीनियर्स का काम है, इंजीनियर्स आए, आगे बढ़े और वहाँ पर कोई सोल्यूशन पेश करें। मैं मिला हूँ उनको, ये डॉक्टर कामरान साहब वहाँ पे होते हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, और उन्होंने वेलकम किया है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान की तरफ से। हम प्रपोजल्स हम उनको देना चाह रहे हैं और अपने साथ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि यहाँ पर ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए हम ऐसे लोगों से टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं जहाँ पर वेल ट्राइड हो और फूल प्रूफ हो और वो चले। तो एजाज साहब की माशाल्लाह गुफ्तगू
बहुत अच्छी रही। तो हम इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं इस मैनेजमेंट का जो बहरान है, एनर्जी मैनेजमेंट का जो बहरान है, हम क्या कर सकते हैं? सो लेट्स पुट आवर थॉट्स into this situation and put forward our contribution to the solution of the problem. So back to Fajr Sahab. Thank you very much. हर 40-50 की बजाय 200-300 पॉइंटों पे लगी हो। जी 30-30, 40-40, 50 साल पुराने पावर प्लांट इन लंदन, इटली या वो रोम शो में सब लगे हुए हैं। जी मैंने देखे। हाँ, अच्छा, तो मैंने ही दिखाया था। तो वो पॉइंट उसमें सिर्फ ये है कि वहाँ की प्रोडक्शन जो है ना, वो स्टेट में कमर्शियली वो कंपेरेबल नहीं बनती। तो वहाँ की म्यूनसिपल अथॉरिटीज 25, 30, 40% तक सब्सिडाइज करती हैं उनको, वो पॉलिसी में है। यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से हमने रखा हुआ है कि पिछले इजाज़ साहब जैसे भी रो रहे थे, आंसू नहीं देखे मैंने, वो ये कि यहाँ 1 मेगावाट भी, हम ये तो कह देते कि 1 मेगावाट भी नहीं किसी ने पैदा किया, आगे एनालिसिस नहीं करते। वो बुलाएं जो डॉक्टर कामरान वगैरह होंगे, नहीं उसे बुलाएं, एक हर सेमिनार में बुलाएं, बल्कि आज उसको बुलाना चाहिए था, आज यहाँ पे होना चाहिए था। आई विल सजेस्ट सर दोबारा कर लें या नेक्स्ट वीक में उसको बुलाएं, एक हम शॉर्ट में उसको बता। ये नंबर 1, इट इज नॉट इकोनॉमिकल इन प्रोडक्शन, कमर्शियली वायबल एक्सेप्ट अंटिल हम सब्सिडाइज करें। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह क्यों वो म्यूनसिपैलिटी वहाँ करती हैं कि वो कहते हैं हमारी सफाई हो जाती है और प्रॉपर चीज़ें निकल जाती हैं। यहाँ पे हम पता क्या कहते हैं, हमने 30 दफ़ा टेंडर कॉल किए हैं कि जी आ जाओ, जो वेस्ट हम देंगे हम उसका 5,000 रुपया पर टन या 15,000 टन लेंगे। डॉलर महंगा, वो कोई पागलो, वो तो पैसे उसको देंगे तो वो आएगा, आप उससे पैसे मांगेंगे। तो आप समझिए इसमें की पॉइंट है, एक हमारी एफिशिएंसी जो है वो उन लोगों से काफ़ी नीचे है। ये भी मैं आपको बताऊं, मेरे पास पड़ी हैं चीज़ें, तो वो इसलिए कि हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ वेस्ट है ना, वो बहुत पुअर है। उसमें जैसे कि ऐश कंट, आपने मिट्टी का कंटेंट पहले 2-3 देखेंगे ना जी, कंटेंट वो इतने ज्यादा, वो बैटर का कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं, मिट्टी बड़ी है हमारे, वजन है वो अखीर में क्या है कि बनता ही नहीं है जी। तो वो उसकी स्टार्टिंग के लिए प्रोसेस और महंगा हो जाता है। इसके ऊपर माइंड कोई नहीं अप्लाई करता, सिर्फ आनियाँ जानियाँ हैं लैंड मैनेजमेंट की। वो जो भी आदमी 3 साल 5 साल के लिए आता है, एंजॉय करके चले जाते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आप उनको बुलाएं, आप बुलाएं, आधे घंटे के अंदर मैं उनको बताता हूँ और वो बताएंगे कि हम नहीं कर सकते, तो उन्हें कहेंगे जी ठीक है, चाय का कप वापस कहेंगे, बिस्कुट खाएंगे, चाय दे देंगे। तो आप बुलाइए उनको, अपना पॉइंट समझ गया। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें कंट्रीब्यूशन आपकी प्रपोजल जानी चाहिए कि अंटिल यू डू दिस, बाकी को 20-30 का स्टडी कर लेना, बाकी जगह पे कितने कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये उनके पास पेपर होंगे। वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट हम सारे काम करते हैं। इजाज साहब का यहाँ जो डाटा था वो इंटरनेट आखिर में इन्होंने पर टन प्रोडक्शन बिजली की वो तो दी है इंटरनेशनल मुल्कों की, हमारी अपनी दी नहीं इन्होंने। इनको चाहिए था 2-4 टन चढ़ा के, इन्होंने पीएचडी भी करनी है उसी के ऊपर और एमएससी भी की। एक मिनट, नहीं आपको इजाजत नहीं है इजाज साहब, नहीं मेरा पॉइंट नो, इसको बाद में देंगे। वो सिर्फ ये है कि ये जानते कि ये इंटरनेशनल फिगर, अगर मेहरबानी करें तो, वरना बड़ा काम है कहने में और करने में बड़ा फर्क है सर। तो बुलाइए, इनको गाइडलाइन देते हैं, अगर ये यस करते हैं अगले साल मैं लगवा देता हूँ प्लांट, पैसे भी दिलवा देते हैं इनको। बस आप याद रखना अपने प्रॉमिस को। थैंक यू वेरी मच सर। शेख साहब, भाई साहब इज अलाउड टू प्रोसीड फर्दर। जी प्लीज। he is the chief executive Qaeda-e-Azam Thermal Power Plant. What I have heard from him that they are going to establish one energy excellence center over there in their setup with the cooperation, support and cooperation of GE General Electric. Excellent. And they are hiring the person, and they are, let me say, they are hiring, they're taking them on their road, the MSc students of the University of Engineering and Technology. They will bear the expenses, total expenses, fees, transportation, everything, and they will charge them nothing, I mean. And they मैं एमएससी में दाखिला ले लूँ,
ले लें तो अच्छा है। अब तो उन्होंने अब करें चलो उससे आगे भी जाना। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ उनको बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी आप तो ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वालों ने इसके बारे में ऐड भी दे दिया था, जैसे ये बताएंगे उन्होंने शायद वो ले भी लिए होंगे लड़के। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है, तो हम इनको सुनना चाहेंगे। यहाँ भी होगा, मगर होता क्या है, बहुत कम रेफरेंस है। ये है प्रॉब्लम हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम जो कहते हैं वो कर नहीं सकते। लौड़े दे के बहलाया जा रहा है, सही कह तो बनाओं में उलझाया जा रहा है, सही कह और जब तक हम इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे इसका कुछ भी नहीं होगा। अप्रोच और लैंग्वेज उनकी होगी ना पार्लियामेंट में, जिससे ये सही होगा, फिर ये सब कुछ सही होगा। राइट 100%। प्रॉब्लम इज देयर, जी क्योंकि उनको अपने जाती इश्यूज चाइना में 75% इंजीनियर्स हैं जो पार्लियामेंट एग्जैक्टली who 75% who get it जो implemented. ब्यूरोक्रेसी Yes, sir. इंजीनियर चाइना में। Thank you. 81 and MS Total Quality Management from Punjab University in 2009. And I moved my all service, engineering service remained with the NASPA within Pakistan and outside Pakistan, 10 years outside Pakistan. And then from 2017 onward, I am heading this company, Parallel Thermal Power Company. My main areas of expertise is, I started my career for 500 kV transmission line, due to Jamshoro, then Jamshoro to Karachi, then Faisalabad to Pindana Khan, and then finally from the Lahore to Sahiwal. Then I was posted to Tabela, unit 11 to 40, and then it is a 5-year stay. After there, I have the contractual and the claims expertise and the experience. From there, I went to Karachi for unit 6 Ben Qasim, which is a switchover to thermal projects. From there, I went to Saudiya for 10 years. There it was absolutely a different of building of a hospital and then selling it to the probable investors, designing, constructing, and handing over to the operational team. This includes also the hiring of all the doctors, paramedical staff, etc., from 6 to 7 countries of the world. So again, it was a unique experience. Then I was 2006, again came back over here. Then in private sector, idle projects, New Bomb Escape, Islamabad Airport, Neelam Jhelum, and Dasu projects. I was the project manager of Dasu for some time during the feasibility stage. So now I come to this. Since 2017, I am working with them. It is this company started in 2015, and we have had the target of constructing and building a power plant by the end of 2017. So practically we were having 30 months. So during that we have had to build, make this company operational, hiring the consultants, finalizing the procurement process, then the construction, and then completing these projects. It was a 1183 मेगावाट का ये कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट था। इसमें हमने गैस टरबाइन की टेक्नोलॉजी थी वो H क्लास वो अडॉप्ट की गई उस वक्त भी, और आज भी एज ऑफ टुडे इट इज़ द हाईएस्ट एफिशिएंसी प्लांट्स। 3 इसमें जो एक्सपर्टाइज है दुनिया में, एक जी है, एक सीमेंस है, एक मित्सुबिशी है। तो पाकिस्तान में जी भी कर रहा है और सीमेंस का भी प्लांट लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली मित्सुबिशी couldn't qualify that. Although we all had a try कि ये तीनों पार्टीज पाकिस्तान में हैं ताकि एक ओपन कंपटीशन हो जाए। ये बिल्कुल पायलट मोड में है। IPP फॉर्मेट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये प्रोजेक्ट था। 75-25% इक्विटी थी, 85 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था, और ये फिर फाइनली इसको 2017 में दिसंबर में कंप्लीट होना था, लेकिन ड्यू टू सब टेक्निकल जो जिसे कहते हैं कि आउटफॉल था जो जी के एंड पे था, बट इट caused us a delay and loss of billions of rupees. But finally in May 2020 we were able to
completed. And since then, this project is alhamdulillah in operation. So far we are able to add 29 billion units to the national grid. We claim that it is the cheapest energy that can any thermal power plant can generate. And so far 500 billion rupees invoices has been raised, money has been received substantially, and then the liabilities have as you power sector people know it, our requirement of availability is 92%, practically we are exercising 93.88%. Load factors are, yes, according to the requirements, and total remaining 50 billion, and all operations are safe. So far, alhamdulillah, we have no problem in operation of that. And one thing I missed, that G as well as the HEI, that is the Chinese company, they have taken our plant as a showcase power plant. Anywhere they are building, anywhere from where they are inviting their guests, they invite here. Sorry, अख्तर साहब, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर है, क्यूबी लिंक पर है, QB link। मेन उसके ऊपर है। गुराया साहब, आप बहुत पीछे बैठ गए, एक विजिट अरेंज करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, हम इंजीनियर्स आपके पास आएंगे सर, इट विल बी आवर प्लेजर। और मैं आपको ये बताऊं कि जो एक विजिट अरेंज करें सर। स्वागता की एकेडमी है, रेगुलरली उनके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो विजिट कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी के रेगुलरली हमें विजिट कर रहे हैं, और ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो ट्रेनिंग के लिए लोग आ रहे हैं, ये भी हमें रेगुलर विजिट कर रहे हैं। उससे हमें भी थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। इट इज़ ऑल्सो एन ऑनर फॉर अस। और अभी हमें यूनिवर्सिटी के लोग भी और उनके प्रोफेसर भी जो बेशक बाहर के उनके जो है ना वो एकेडमियाज हैं, वो भी विजिट करने के लिए जो है ना वो आ रहे हैं। उससे हम भी प्राउड फील करते हैं, और वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम अ लॉट ऑफ। वेल, एज वी ऑल नो कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द CSR कि वट एवर द प्रॉफिट्स वी जनरेट जो है ना 1 or 2% वी नीड टू इन्वेस्ट फॉर द सोशल अपलिफ्ट ऑफ द पीपल। उसके ज़ाहिर है कि SCCP के कुछ जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं, नेफ्रा ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भी हमने तकरीबन जो है ना स्टडी किया है, चाहे वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से हो या बाकी जगहों से हो। तो ज़्यादा तो काम उसमें फिलैंथ्रोपी का ही है, और फिर बाकी जो है ना बिजनेस मॉडल से रिलेटेड है, कुछ उसका है, और फिर बात जो है बहुत फोकस्ड है कि आप एक जगह इन्वेस्ट करते हैं और फिर उससे जो है ना आपके बिजनेसेस में जो है ना वो रिफॉर्म लाता है। शायद वो कोक के हों या साफ पानी की जो कंपनीज हों, वो इस तरह के जो है ना प्रोजेक्ट करते हैं, बट वी आर इन दैट जो है ना हमारे प्रॉफिट्स जो है ना 10 से 12 बिलियन के दरमियान है। तो अगर उसका हम 1% भी लगाते हैं तो ये 100 बिलियन से लेके 120 बिलियन तक की जो है इन्वेस्टमेंट है, वी आर पुटिंग फॉर दिस सोशल अपलिफ्ट ऑफ द पीपल जो है ना। क्योंकि आपको सुनकर हैरान होंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है, इसमें 1185 स्कूल और कॉलेज है, सिर्फ FA तक 1185 स्कूल और कॉलेजेस हैं। कितने नंबर ऑफ जो है ना वो स्टूडेंट्स होंगे, और ये तकरीबन जो है वो हालांकि 35 लाख की शायद जो है वेरी पॉजिटिव चेंज इन दिस होल सोसाइटी जो है। मैं आगे भी आपको बताऊंगा, वैसे मैं जस्ट आपको जो है ना क्विकली बता देता हूँ कि अभी एक हम तो एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिस पे डिटेल पे हम बात कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हमने एक जो है ना कम्युनिटी पार्क है जो वहाँ पे बनाया है, जो फंक्शनल है। बड़ी खुशी होती है कि ईद पे बच्चे फैमिलियाँ वहाँ पे आ रहे हैं, झूले बेंच जो है ना स्माइल ऑन देयर फेसेस जो है ना मेक अस हैप्पी ऑल्सो। हमने एक टेम्परेरी डिस्पेंसरी लगाई है जिसमें हम बेसिक तमाम जो भी हमारे पास आ रहे हैं, इस वक्त 100 तकरीबन पेशेंट्स डेली के आ रहे हैं, उसको हम फ्री मेडिसिन भी जो है ना दे रहे हैं। इसके साथ ही हम जो है ना हॉस्पिटल भी एक बिल्ड कर रहे हैं, जिसके पहले 2 फ्लोर्स जो है ना तो हॉस्पिटल के ही लिए रहेंगे, जिसमें हम बेसिक जिस तरह है कि जो वुमन से रिलेटेड हैं, जो बच्चों से रिलेटेड जो हैं, और जो आई से ENT से उससे रिलेट करती हैं, जो नॉन इन्वेसिव जो है वो फैसिलिटेशन है जो है ना होंगे, जिससे तमाम जो कम्युनिटी है वो बड़ी इनकरेज होगी और पीपल विल बी इनकरेज कि हम पार्टिसिपेट करें। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो ये जो हमने जो रेस्क्यू है वहाँ पे 112 जो है ना, हमारे पास एक बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस है, हमारे पास फायर फाइटिंग की व्हीकल्स है। वी हैव प्लज्ड इट विद द
रेस्क्यू 112 के साथ जो है ना शहर में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो भी सपोर्ट देम जो है ना। इसके साथ हमने रेस्क्यू 112 की जो है ना कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि जिससे उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस टू सर्विस टू द कम्युनिटी बढ़ जाएगी जो है ना। वी हैव इन्वेस्टेड फॉर देम, वी हैव परचेज दैट इक्विपमेंट फॉर देम और कंटिन्यूसली वी आर इंटरेक्टिंग कि हम किस तरह जो सर्विसेज हैं उसके सारे स्ट्रक्चर को बिल्ड अप कर लें जो सारी कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह जो है वो बेनिफिशियल होगा। सर उसके बाद हमने जो है वो हमने ये किया कि दो पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे दो ऐसे स्पोर्ट्समैन जो हमारा नाम रोशन कर सकें या जिसपे पोटेंशियल हो, उसकी अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो हमने 2 मिलियन उसके लिए डेडिकेट किया हुआ है। अगर ये उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वी विल सपोर्ट दैट जो है ना। अभी तक हमारे पास ये आया नहीं है सिवाय इसके कि जो पिछली दफ़ा जो ओलंपिक्स में 4थे नंबर पे या 5वें नंबर पे हमारे जो आदमी आए थे उनको सिर्फ हमने प्राइज मनी दी है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि हमने भी एक इसमें यहाँ पे 2 फरवरी में हमने मार्च में हमने करवाया स्पोर्ट्स गाला करवाया है जो शेखुपुरा स्टेडियम में हुआ है। इसमें 100 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि उस दिन जो है वो बच्चे और बच्चियां जिस तरह उन्होंने शाउटिंग की है, जिस तरह उन्होंने कम्पीट किया है, ये तकरीबन हमने 18 ओलंपिक्स के जो 18 ओलंपिक्स के जो इवेंट्स हैं वो हमने पिक किए थे जिसमें 100 मीटर है, 200 मीटर है, 4 मीटर है, 400 मीटर रिले है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और इसका इक्विपमेंट भी हमने खरीद कर दिया स्कूल और कॉलेजेस को जो है। इसमें हमने एक बुक पब्लिश की है जो आपकी वसाफत से जो है ना तमाम साथियों को जो है ना कम से कम उसकी PDF तो अवेलेबल होंगी कि जिसमें हमने किया क्या है कि जो हमने इवेंट्स कराए थे तकरीबन जो है 38 ओलंपिक के इवेंट्स को फोकस कर रहे हैं जो आसानी के साथ बच्चे कर सकते हैं और बच्चियां कर सकती हैं। उसके हमने ओलंपिक्स के रिकॉर्ड एक कॉलम में लिखे हैं, एक में हमने उसी के इवेंट के अगेंस्ट एशियन के रिकॉर्ड हमने लिखे हैं और फिर हमने जैसे 2022 में हमने स्पोर्ट्स गाला किया वहाँ पे उन बच्चों का टाइमिंग वहाँ पे लिख दी है। तो इससे जो है ना 1 साल का जो है ना वो हम उन्हें प्रोवाइड कर देंगे, ये बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर अल्लाह ने इन्हें कोई सलाहियत दी हुई है और दे मेक देयर एफर्ट्स जो है ना माइट भी दे देंगे जो है ना गुड नेम टू अस। अच्छा इसी के साथ हमने आप इंजीनियर्स हैं, आपको जो ये स्कूल्स के जो कॉलेजेस के लिए अलग से हमने एक फंड्स डेडिकेट किया है। स्कूल्स की हमें बेसाब रिक्वेस्ट आ रही है, किसी का वॉशरूम नहीं है, किसी का डोर नहीं है, किसी की फर्नीचर नहीं है, जो हमारी हम तकरीबन 2 मिलियन के करीब इस वक्त हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि सालाना हमारा ये जा रहा है। हमारे पास 3 मिलियन तक के फिलहाल हमने बजट्स उनके लिए एलोकेट किए हैं जो भी उन बच्चों की रिक्वायरमेंट है, खासकर पानी की, वॉशरूम्स की, गेट्स की, सिक्योरिटी की और टीचर्स के और बच्चों के बैठने की वो ज़रूरियात हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ ब्रिंगिंग अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट जो है ना फ्रॉम द बच्चों से और हमें उससे आ रहा है। इसी तरह हम एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इंजीनियर्स हैं भी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हमारे भाई ने बात की है कि ये क्रॉप कटिंग में जो है कि जो वीट के सीज़न में और जो धान के चावल के उस सीज़न में है ताकि उसकी कटिंग ना हो, हम डायरेक्टली इफेक्टिव हैं क्योंकि हमारे सक्शन एंड पे जो है जो कंप्रेसर्स हैं जब ये बर्न होती हैं तो वो सक करता है उसे। हमारे तो 6.5 लाख जो है ना डॉलर के वो फिल्टर्स हैं। आल्दो के हमने बहुत सारी इंजीनियरिंग इंटरवेंशन उसमें की हैं तो हमें कम इफेक्ट पड़े, लेकिन वी वांट टू टेक इट जो है ना जैसे कहते हैं ना कम दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड इट कि अल्लाह ने उनको जो है वो इंटलेक्ट भी दिया और उन्होंने हार्ड वर्क भी किया। अगर उनको जो है ना एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल जाए तो देयर इज ए गुड चांस कि ये बच्चे जो है ना वो एक्सेल जो है वो करें अपने उसमें जो है ना। एज वी ऑल नो कि देयर इज अ सेइंग के जो एक्सलेंस के दरमियान और गुड के दरमियान जो गैप है और जो गुड और एवरेज के दरमियान गैप है ये कांस्टेंट रहता है। सो इफ़ यू स्टार्ट एलिवेटिंग द लेवल ऑफ योर एक्सलेंस जो है सो बाकियों का ऑटोमेटिकली जो है ना इट विल गेट रेज जो है। सो दिस इज व्हाट जो है ना वी आर इंटेंडिंग। और एक और भी बात भी मेरे ऑडियंस के लिए जो है ना वो होगी कि ये पावर सेक्टर है जो उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस में ना आपको नॉर्मल इंजीनियर्स होंगे, ठीक है ना, उन्होंने बी इंजीनियर हो गए ग्रेजुएशन के बाद उन्हें ज्वाइन कर दिए या डिप्लोमा से कुछ लोग होंगे जो उसकी डिफरेंट जगहों पे आ गए। कोई बहुत ज़्यादा जो है ना हाईली क्वालिफाइड लोग जो है ना मौजूद नहीं है।
उस तरह जो है ना, अगर मैं क्यों PhD है या MS है, अब बच्चे आ रहे होंगे। लेकिन जब हम इंटरेक्ट करते हैं GE के साथ या सीमेंस के साथ, पावर सेक्टर में ही करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें पता लगता है कि वो 10-10, 15-15 जो है ना MS हैं, PhD हैं, वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो अगेन हमने वहीं से वाला आइडिया पिक किया कि क्यों नहीं जो है ना ये मेरे बच्चे, अगर उससे प्रॉपरली सैलरी मिलती है, फैसिलिटीज मिलती हैं, तो पावर हाउस में करें। उस PhD डॉक्टर को क्या मसला है, सिर्फ पढ़ाना ही तो जिंदगी नहीं है ना, वो पढ़ाने के साथ साथ जो है इसको ऑपरेट भी कर सकता है और इसमें भी वो एक्सीलेंस ला सकता है। इसीलिए जो है ना हमने ये कहा है कि हम ये जो है ना जो 20 बच्चे लेंगे, ये अपना MS 1 साल में कंप्लीट करेंगे। वी आर थैंकफुल अपने असातिज़ा का जो यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर साहब का, और इसी तरह और जो है ना मेहरबानों का, जिन्होंने हमें हेल्प की। यूनिवर्सिटी के साथ हमने इंटरेक्ट किया, उसने हमारे सारे उसको जो है ना जो हम ट्रेनिंग में स्टफ इस्तेमाल करेंगे उसको देखने के बाद जो है ना दे हैव अलाइंड आवर ट्रेनिंग और जो यूनिवर्सिटी की अपनी एजुकेशन है उसको लेक्चर को मिला के ये 1.25 साल में जो है ना 3 महीने जब इसी MS जब कर रहे होंगे हमने आगे, मैं आपको भी इससे मिशन से आगे अगर मैं चला जाऊँ डायरेक्टली, तो ये हमारा है कि ये जब MS अपनी कंप्लीट करें, हम GE के साथ ऑलरेडी इंटरेक्शन में हैं और HEI जो चाइनीज़ जो है ना जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ इंटरेक्शन में है। इसी में हमें डॉक्टर साहब की भी जो है ना हेल्प की ज़रूरत होगी। हम डॉक्टर साहब के साथ ही MOU साइन करने के लिए जा रहे हैं लम्स में जो है ना, जहाँ पे हमें इनके जो है ना इंटेलेक्ट जो है ना जो गाइडेंस की ज़रूरत होगी, ताकि इन बच्चों को जो है अपने MS के बाद जो है ना PhD में स्कॉलरशिप्स के साथ जो है ना इंडस्ट्री के मौके मिले। और जो दुनिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस है, जिस तरह मैंने कहा कि एडिसन लैब है, उसमें वो हर साल बच्चे इंडक्ट करते हैं, डिफरेंट मालिक से करते हैं, तो वाई नॉट कि ये मेरे बच्चे जो है ना वहाँ पे जाके इंडक्ट हो। मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें 3 जो है वो GE की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक एडिसन लैब है, जिसमें वो अगले 10 साल के जो जितने भी जो है ना लेटेस्ट आइडियाज़ है जो इनक्यूबेट हो रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, रिसर्च हो रही है। वी वांट कि मेरे बच्चों को पता हो कि पावर सेक्टर में अगले 10 साल में क्या होने के लिए जा रहा है। इसी तरह जो उनका जो ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है, उसमें बहुत बड़ी जो है ना वो वर्क कर रहे हैं, चाहे वो ये जो है ना विंड की टरबाइन के डिज़ाइन से हो, स्मॉल जो है ना विंड टरबाइन हैं जो लो इंटेंसिटी में चलती हैं, चाहे वो जो है बैटरीज की स्टोरेज का है, वो हमने भी देखी है, मतलब 4-4 मेगावाट, 5-5 मेगावाट, 10 मेगावाट की स्टोरेज कैपेसिटीज अवेलेबल हैं, दैट कैन चेंज जो है ना लॉट ऑफ जो है ना वो कम्प्लेक्शन ऑफ द एनर्जी जो है ना सिनारियो, जिसमें डॉक्टर साहब भी बात करेंगे। और तीसरा उनका एक है ग्रीनविल में, दुनिया में सिर्फ एक ही जो है ना ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पावर हाउस इटसेल्फ लगा हुआ है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इम्प्रूवमेंट होती है, कोई नया डिज़ाइन आता है तो उसको उस जगह पर इंस्टॉल करके उस पावर हाउस को रन किया जाता है, और फिर इसमें गैजेट्स रखे हुए हैं कि आप उससे जो है ना उसकी परफॉर्मेंस को वो करते हैं। जिस तरह पहले होता था कि आप पार्ट लगा दें किसी जगह पे, वो 5 साल चलता है, 10 साल चलता है। ये एफिशिएंसी इसीलिए आ रही है कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो बैक एंड पे उसके कूलिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहा है, उसमें मटीरियल्स को वो जो है ना वो इम्प्रूव कर रहा है, उसमें कोटिंग को उसने इम्प्रूव जो है ना वो किया हुआ है। तो ये सारी बातें मेरे बच्चों के लर्न करने के लिए इंशाल्लाह ये जब जाएंगे तो अल्लाह ने जो उनको नेचुरल इंटेलेक्ट दिया हुआ है और जो विंडो हम ओपन कर रहे हैं आप सबकी जो है ना वो, और एनर्जी डिपार्टमेंट की जो है ना उसके जिसे कहते हैं ना कि हेल्प और मदद के साथ, तो वी फील कि इंशाल्लाह जो है ना ये इट इज़ गोइंग टू हेल्प जो है ना। अच्छा ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग के उनका लिविंग रहना सहना ये सब हम पे करेंगे, उसकी फीसें हम पे करेंगे, उसके लॉजिस्टिक्स भी हम जो है ना वो पे करेंगे। और हमने ये कहा है कि जब वो बच्चे आएंगे तो हमारा ये ख्याल है कि उनको जो है ना अच्छे जो है ना वो ड्रेस भी जो है ना वो बना कर दें, ताकि वो अच्छी तरह मैस में बैठें, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन स्किल्स उसके अंदर आएँ, और वो कपड़े भी पहन के जो है ना वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ताकि उसके अंदर ये शाइनेस जो है ना वो ना हो। इंशाल्लाह वी विल मेक देम जो है ना गुड जो है। वेल ये तो हमारे जो है ना उसके जो है ना वो सिस्टम्स हैं जो हम जिनके ऊपर जो है ना हम ट्रेनिंग करेंगे। इस ट्रेनिंग में मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि इस तरह हमने स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड कि जिस दिन फर्स्ट डे ये बच्चे आएंगे उनको USB पे और उनके कंप्यूटर के ऊपर ना ये सारे का सारा डाटा जो है वन टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिस इंक्लूड्स जो है ना उसके ऑपरेशनल मेंटेनेंस मैनुअल हैं, एज बिल्ट ड्राइंग्स हैं, कमीशनिंग उसके मैनुअल्स हैं, मंथली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। हमने एक स्पेशली इनके लिए जो है UET के साथ मिलके जो है ना 200 क्वेश्चन अब वो बिल्ड होते चले जाएंगे, वो क्वेश्चन और वो आंसर भी उसके नीचे जो है ना वो स्टूडेंट को पहले से ही दे दिया है।
कि अब वो फ्री है कि जब उसकी जो है ना जिस जगह भी डिप्लॉयमेंट होगी, फर्स्ट करते हैं फायर फाइटिंग की उस जगह के पंप्स के उसकी डिप्लॉयमेंट है, उसका सुपरवाइजर वहाँ मौजूद होगा, इसके पास ये सारा डाटा मौजूद होगा, ये क्वेश्चन भी मौजूद होंगे, वो अपनी आंखों से उसे देखेगा, ही कैन मेक दोज क्वेश्चन और टू कैन अंडरस्टैंड, वो जिस तरह भी चाहे उसे दिन हो रात हो उसकी जो भी ड्यूटी होगी, क्योंकि हमारा हम तो वी आर रनिंग द प्लांट जो है ना, तो हमारी डिप्लॉयमेंट तो अराउंड द क्लॉक है। तो इस वजह से अल्लाह ने इनमें से जिनको जितनी सलाहियत दी होगी, वी बिलीव कि वो उतना एक्सेल करेंगे और उसमें उनकी जो है ना वो लर्निंग होगी। और वो हमने किसी ने कहा था ना कि प्रोजेक्ट साइट को विजिट करेंगे, कोई प्रोजेक्ट साइट को विजिट करना चाहे, गुराया साहब है, इनको कांटेक्ट करें और हम इकट्ठे मिलके बसों में बैठ के जाएंगे। शेखोपुरा तक जाना है जी, हम ग्रुप में भेजेंगे, ग्रुप भेजेंगे आपको, हम ग्रुप भेजेंगे, अब जाएंगे वहाँ। दूसरी बात भाई हल्की सी करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त चाय की ब्रेक कर रहे हैं कि चाय के बाद वापस आ जाए 10 मिनट। अच्छा, दूसरा ये हम सब जो यहाँ बैठे हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि अपना अपना टाइम, बड़ा कीमती टाइम निकाल के यहाँ आके बैठे हैं और इसमें हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। अगर आप ये समझें कि हम किसी कोई यहाँ पे बैठ के हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा या हमारे कोई कमर्शियली बेनिफिट होगा, ये कमर्शियल बेनिफिट वाले लोग यहाँ नहीं बैठे। ये वो लोग बैठे हैं जो जिनका दिल जल रहा है, एहसास के लोग हैं और फी सबीलिल्लाह वाले लोग हैं। ये अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो यहाँ बैठे हैं। वॉलंटियर्स हैं, मैं भी वॉलंटियर हूँ, मैं अपने ऑफिस से उठ के आया हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से एक पैसा भी नहीं लेना, नहीं लेता, बल्कि अपने पल्ले से मैं डालता हूँ। ये है ख्वाजा साहब, ख्वाजा वहीद साहब, मैं तो आपको सल्यूट कर रहा हूँ आज। इनको सल्यूट करता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे लोग आपने कैसे इकट्ठे किए। लोगों का तो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना ही आजकल बहुत मुश्किल है। और ये डॉक्टर फयाज साहब का आज बड़ा रेफरेंस हो रहा है, तो अब भी बड़ा इश्तियाक रखते हैं कि हम आपको सुनना चाहेंगे। तो इस वक्त एक फ़िज़ा पैदा हो रही है कि उठे और लेट अस डू समथिंग। असली बात तो ये है। तो इस वक्त हम लंच की ब्रेक करेंगे। 2 मिनट में रोडा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो वेस्ट के बारे में ज़रा बात हुई थी कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। वो 40 मेगावाट का पावर प्लांट लगा, तो हम बात करेंगे तो बताएंगे सर। जस्ट चाय के बाद 10-15 मिनट तो आप सुने ना, 2 मिनट वो कहता था मैंने सिर्फ बताना है। बताना नहीं। कहाँ है, कौन आप हैं? सिर्फ बताना है या कोई 10 मिनट में? अब तो आपसे For 8 years almost I transferred power New Zealand, and then I switched to Saudi Electric Company, Saudi government, SEC. Served there for 6 years. Recently I have joined Ravi Urban Development Authority, RUDA, as a director of utilities. In my portfolio, nowadays, currently we have few projects running on. जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है वेस्ट टू एनर्जी का 40 मेगावाट का एक पावर प्लांट हम लगा रहे हैं लकुड एयर पे, लैंडफिल साइट है। और उसकी हमने बिडिंग प्रोसेस भी, कंसल्टेंट नेस्पाक है प्रोजेक्ट का सर, उसका बिडिंग प्रोसेस भी हो गया बिकॉज रूदा फॉल्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ रूदा, लकुड एयर फॉल्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ रूदा नाउअडेज। तो हम उसको EPCF मॉडल पे कर रहे हैं सर। एंड वी हैव फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग सोलर एंड मोल्टन सॉल्ट्स, उसके लिए भी हम डिफरेंट वेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वेस्ट का बता देना, ओनर कौन है और किस मोड में लग रहा है सर? ये EPCF पे लग रहा है, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट। EPC तो आपका बिजनेस आपका टेंडर होगा ना जी सर। वो प्रोजेक्ट ओन कौन कर रहा है, फाइनेंसिंग कहाँ से आ रही है? IPP के तौर पे लगेगा, प्राइवेट कंपनी को बिड कर ओपन मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर जी? आप सेल करेंगे या इन हाउस यूज करेंगे?
सर एनर्जी हम अपने साथ हम 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं महमूद कुटी पे और डिफरेंट लोकेशंस पे। एनर्जी हम अपने लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, कैप्टिव पावर प्लांट होगा, कैप्टिव मोड में। इसकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा है, कौन हु आर द फाइनेंसर? सर जो कंपनी इंस्टॉल कर रही है सर, जो टिपिंग फी है कंपनी कौन सी है? सर ये न्यूजीलैंड उसकी हॉलैंड की कंपनी है सर, हार्वेस्ट वेस्ट, वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रही है। ये प्रोजेक्ट पहले भी लॉन्च हुआ था पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने की था 2016 में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या होगी और आपसे कैसे चार्ज करेंगे? सर 8 सेंट्स पर यूनिट। शेख साहब इसके लिए ज़्यादा वक्त मैं चाहिए। इसीलिए कहा था कि 2 मिनट ना Just for 10 minutes, because the time is short and the energy is also. 10 मिनट चाय पी लिए या 10 मिनट सिर्फ चाय पी, सिर्फ चाय पी ली, सिर्फ चाय। खाना बाद में और उसके बाद खाना भी है। खाना बाद में। ये अच्छा किया आपने बताया। मैंने बता दिया ताकि आप आओ। शाम का क्या हुआ है? 2 बजे। मैं के सर जी 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 पहले भी बोला था। मेरा भाई तो एक ही चीज़ और ठीक है I have enough knowledge. हम खुद अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कुछ नहीं किया The situation development in his power house. That was strange for everybody who is financing that power plant and all the provisions in the premises they are telling us. So regarding that, anybody has any question, so he is ready to answer. Any reservation anybody has, he is ready to answer. Please. पहले फोन करना। No question. I'll keep There is one question. Yeah, please. Sir, we want to visit your site. So what's the procedure? What's the formal procedure to adopt? मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है, जैसे ही आप मुझे कॉल। एक जो ₹5 में है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉल है, जिसमें हमारी सैलरी शैलरी और बाकी चीज़ें, ये 3-4 पैसे हैं। इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट। So financial liabilities की और मेरे परव्यू से थोड़ी सी बड़ी बात है जो गवर्नमेंट लेवल पे है, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर आपकी तरह और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है, जिसको जाहिर है कि एक पॉलिसी रिफॉर्म है जिस पर डॉक्टर साहब भी काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्रेसिव ही जो है ना वो रहेगा। अगर मैं और आप समझते हैं कि हाइडल का प्रोजेक्ट एक दिन में लग जाए तो इट इज़ नॉट। कम अज़ कम जो है ना, मैं भी अगर आप दासू को देखें, अभी हाफ वाला प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। 2006 से हम इसकी फिजिबिलिटी पे लगे हुए हैं और आज अभी हाफ प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होने के लिए जा रहे हैं। इसमें बड़ी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिसे कहते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ा वो है। इसका फिर फाइनेंसिंग भी वो जो है ना आपने अरेंज करनी है। ये तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट तो 10 साल में अपनी जो है ना जो रीपेमेंट है वो कर जाता है, लेकिन उसकी तो 10 साल में जो है रीपेमेंट स्टार्ट भी नहीं होती है। सर इसमें मैं चूँकि आई बाकी डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे
पाकिस्तान में हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए जितना डाटा मौजूद है, जितनी साइट आइडेंटिफाइड हैं, वो बहुत लास्ट स्टेज तक है। आप जब भी आपको फंडिंग अवेलेबल होगी, जब भी डिसीजन मेकिंग होगी, वो होंगी। अब भी अगर आप हाइडल की जो है ना जो लिस्ट आउट कर लेंगे जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन के फेज में, ये बहुत बड़ा जो है ना वो नंबर है। लेकिन ये कब कंप्लीट होगा, जाहिर है कि मैं उसके ऊपर या तो गवर्नमेंट पॉलिसी साथ बता सकेंगे या कोई और बता सकेगा, बट ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो जीरो है। ये भी नहीं है कि हम सारे के सारे वो अच्छे हैं। यस, जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं है। पोर्टेबिलिटी एनर्जी मिक्स रेशियो आस्ता आस्ता चेंज हो रही है। मुझे क्वेश्चन करना जी सर। I just wanted to add, as USAF belongs to the Energy Department, is one of the Department of Energy. So, in the Energy Department, there is a department, Punjab Power Development Board. We have identified the resources based on the World Bank study. There is a huge potential available, as USAF has said. There is a one big project, potential of 135 megawatt is available. Tosa. मैं समझता हूँ उन्होंने कोई कसर इस एनर्जी डिपार्टमेंट ने नहीं छोड़ी थी कि अपने इन प्रोजेक्ट्स को इस तोसा के लिए उन्होंने कितनी दफ़ा जो है ना वो गए हैं, नेफ्रा के पास गए हैं, जो है ना जो पॉलिसी साज है उनका बैन लगा रहा है। अब दोबारा जो है ना उसमें जो है ना वो दे आर ट्राइंग जो है ना, और हर दफ़ा वो कोशिश करते हैं। और बादाम भी मैं समझता हूँ कि एनर्जी डिपार्टमेंट जितनी कोशिश कर सकता था उसने की, और अब भी वो कर रहे हैं। इवन वेस्ट जो है ना जो वेस्ट टू एनर्जी है उसमें भी यही वाला मैटर है कि आपको जो टैरिफ मिल रहा है वो 10 रुपये का है, वो जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो जो है ना 18, 20, 29 की आ रही है। तो वो किसको जो है ना उसका करे, तो दरमियान में भी उसका कोई मैकेनिज्म फाइनेंशियल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि चूँकि मैंने तो सिटीज़ को क्लीन करना है तो देन आई मस्ट पे दैट कॉस्ट। लेकिन ये इतनी शायद ज़्यादा कास्ट है कि वो वायबिलिटी नहीं आ रही थी। बट फाइनेंशियल माइंड्स में और जो है ना जो टेक्निकल माइंड्स हैं, दे नीड टू सिट टुगेदर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इट नीड टू बी अ कमर्शियली वायबल लाइबिलिटी शुड नॉट बी क्रिएटेड ऑन स्टेट और एज वेल एज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। सर मैं कुछ ऑब्जर्वेशन दूँ। अच्छा था, अगर मैं अगर अच्छा बोलूँगा तो नहीं, मैं ज़रा क्विकली, क्योंकि इन्होंने एनर्जी डिपार्टमेंट का जिक्र किया तो बहुत से इंसेंटिव जो है वो बैठ जाए जाके फिर एनर्जी डिपार्टमेंट इस वक्त जो है वो ऑफर कर रहा है इंसेंटिव्स कि कैप्टिव मोड में लोग आए और पावर प्लांट्स लगाएं, और उनको सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है वो कमिटमेंट है टू परचेज पावर बैंक डेवलपमेंट, यानी मार्केट उनके पास सिक्योर की हुई है। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। फिर और इंसेंटिव है कि जो गारंटीज है बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहा है, वो जो साइट्स है कैप्टिव मोड में, अब वो देखना है कि आया वहाँ पर जो बिजली पैदा होगी वो कौन इंडस्ट्रीज़ है, कैसे डेवलप करेंगे, वो कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो इस वक्त क्या है कि बावजूद इसके कि इतने इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, लोग नहीं आ रहे। जो कुछ लोग आए भी हैं वो इधर उधर हो गए हैं, चले जा रहे हैं। जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर बिकम शेकी, इन्वेस्टर शेकी हो गया और वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा एक ब्लॉकेट लग गया। मैं खुद पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर हूँ और मेरे सामने आती है प्रपोजल्स आते हैं, हम वेट करते हैं, हम उनको बुलाते हैं, कई दफ़ा उनको बुलाते हैं और क्या क्या अट्रैक्शन उनको देते हैं, लेकिन इन्वेस्टर जो है वो शाई है। इन्वेस्टर शाई है क्योंकि वो इन्वेस्टर समझता है कि मेरा पैसा जो यहाँ पाकिस्तान में मैं लगाऊंगा, पंजाब में लगाऊंगा, वो डूब जाएगा। सो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हम लूज़ कर चुके हैं। जब तक हम रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम उनका सोल्यूशन नहीं कर सकते। सो रियल प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो क्रेडिबिलिटी इज़ द प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब बताएंगे इसके ऊपर ज़्यादा, आपको कुछ रोशनी डालेंगे कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रेडिबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं। ये क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम्स सिर्फ इन्वेस्टर्स और पावर सेक्टर के नहीं है। ये जो
छोटे छोटे हमने जो बिखेर दिए हाउसेस, पावर प्रोड्यूसर कोई और है, ट्रांसमिशन वाले कोई और है, और डिस्ट्रीब्यूशन वाले कोई और है, और वो उनको भी बिल्कुल एक खिचड़ी पका दी है, और उसको आपस में कोहेरेंस नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, और उसका रिजल्ट क्या है कि डिस्प्यूट्स हैं, और वो डिस्प्यूट्स अल्टीमेटली कौन बियर करता है? वो कंज्यूमर बियर करता है, सार्फिन जो है वो बियर कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम्स है। अब ये प्रॉब्लम्स अगर जब तक हम उसको अगर हम आंखें बंद कर लेंगे, हम कहेंगे कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आर देयर। क्रेडिबिलिटी, बेसिक प्रॉब्लम इज द क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ ट्रस्ट। हमारे कंज्यूमर में भी लैक ऑफ ट्रस्ट है, वो टैक्स पेयर के ऊपर लैक ऑफ ट्रस्ट है। वो कहते हैं हम टैक्स क्यों दें गवर्नमेंट को? हम जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, क्या गवर्नमेंट इन रिटर्न हमारे वेलफेयर पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है? वो नहीं करता। सो गवर्नमेंट इज एट डिफॉल्ट। गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही है। गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही है तो हम IMF से कर्जे ले रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि गवर्नमेंट चलाने का कि आप बाहर की बैरूनी ममालिक से जाके कर्जे लें। ये तो कोई तरीका नहीं है। उसकी वजह क्या है? एक हमारे साथी ने यहाँ पे बताया था कि क्योंकि हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी झगड़ते हैं, पार्लियामेंट से बाहर भी झगड़ते हैं, बैंक में भी आपस में झगड़ते हैं। सिंध जो है वो पंजाब से झगड़ती है, पंजाब जो है वो सरहद से झगड़ता है। सो ये लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड लैक ऑफ ट्रस्ट हमारे अंदर सरायत कर गया है। अब आप इसको इंजीनियरिंग के तरीके से सॉल्व करेंगे या इसको सोशल इंजीनियरिंग के तरह किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये है मसला एक्चुअली जो हमें इस वक्त जो फेस करना पड़ रहा है। अगर हम रियल प्रॉब्लम को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम उसके सोल्यूशन पे नहीं आ सकेंगे। एक्सक्यूज मैं आपको थोड़ी जी इनक्रेडिबिलिटी जो लेकिन इसमें लफ्ज गवर्नमेंट भी शामिल कर गवर्नमेंट भी शामिल, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हाइडल पॉलिसी पंजाब में नहीं चली, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसकी पॉलिसीज एटसेट्रा। एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा, उसके बाद आप इनवाइट आप, क्योंकि फिर डॉक्टर साहब नाराज होते हैं कि जी आप ऐसे ना करें। हो सकता है वो ये है, नहीं आप हो चुके हैं, इसलिए वो ये है कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट दिए हुए लोगों को बांटे हुए हैं, वो पॉलिटिकल सिफारिश और हिस्सेदारी के ऊपर वो टर्न अप ही नहीं होता। नहीं टर्न अप। मेरी लास्ट टाइम पीका के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एक लेडी थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुझे नाम शाम नहीं जरा याद रहते, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं इस पर ड्रामे? मैंने एक बंदे को नोटिस दिया, मैंने कहा उसको 7 साल हो गए हैं, आप टर्म्स जो एलोकेशन की है साइड की, आप भाईजान उसके ऊपर करें, उसको नोटिस दें और उसको काट के अगले बंदे को दें। अब जब वो बंदा मार्केट में वो लेटर लेके फिर रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे पास परमिशन है, आप पैसे लगाएं, तो मैं ये परमिशन आप ले लें। वो मांगता, दूसरा 2-4 करोड़ लगाता है, वो 50 करोड़ से मांगता है। तो ये चीज़ें जो बॉटल बैक पे है ना, इनको कोई लुक आफ्टर, ये बेसिक चीज़ है। और मैं टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डालता हूँ कि उन्होंने पिछले 10 साल में एक बंदे का लेटर जो एलोकेशन है, लेटर ऑफ इंटेंट जो भी होता है, नहीं कैंसिल किया। और क्यों एक्सटेंड करते हैं? टोटल तो 100% तो नहीं 99 कर लेते हैं, आप अपने बंदे हैं, आप अपने बंदे में याद कर रहे हैं, कम नहीं है पब्लिक भी। Providing building services and building services in total from ab initio to the end. He explained the thing over here, but let me say that way, that from the ab initio till the end product, including the construction to provision and everything. Am I right? Okay, I'll explain. Moreover, and upcoming sustainable energy solution having offices in Canada and Pakistan, and mainly operating in Arabian Gulf countries and Central Asian states apart from Pakistan and Canada. Mr. Salir Khan is the first Pakistani chartered energy engineer from Energy Institute, UK.
and he is also international professional engineer in UK, European engineer EURI, and chartered building services engineer having BSc mechanical engineering and MSc in building services engineering from Brunel University, London, UK. Now he will be coming over here and explain how, let us share his vision and intelligence about the energy management, and he will explain the things. Please give the big hand clap. As Khwaja Sahab already introduced me, I'm basically a building services engineer. So today I'm going to talk about energy conservation part of it, rather than power generation part. I believe everything has been just discussed regarding the power generation part of it. That's my brief introduction, which is already in debate. Now, when we talk about building services engineering, we are talking about all systems which require except the structure and the architecture part. Whatever come in the building, whether it's regarding power distribution, lighting, fire life safety, HVAC, plumbing, firefighting, etc. So that's all required in terms of energy conservation part. Now, because the subject is too big, and as I said in previous slides, I already made 250 slides, but the time constraint is there, so I'm just going to reduce those slides back to only HVAC system, which is mainly more power consumption part in building services engineering. So I'm just trying to explain the new HVAC system, which is need of today demands. Now, what's happening over here right now? The world is really getting to the urbanization part of it, and almost 70% of the population which is moving to the city, they are creating CO2 emissions and that part of it. Okay. So energy demand is increasingly due to increased population, economic growth, could be responsible for 90% high energy demand by 2030. Now the building sector energy demand is range within 12 to 14% of the total consumption part of it. And out of that one, almost 59% electricity produced, out of which 30 to 40% is being used for HVAC system part of it. As the people comfort level is going to increase and the demand is going to increase. So for that reason, I'm just trying to focus on HVAC system part of it rather than conventional part of it. Okay. So here the second part come up. What we are talking about right now, we are not saying here, I'm just trying to talk about energy conservation part of it. Generation and transmission is one part of which already everybody talk about it. So right now I'm going with the energy conservation related to the HVAC system part. Now these are the slides which I have just taken from the Pakistani Economic Survey, which they are talking about in 2022 the power demand is going to increase. My view will not be agree on that, but this is what the data I have got from the certain resources part of it. And that's related to demand power trends. Okay. Now what are the principles of energy management? This is the topic of today, what we are trying to say about it. It is procure energy at lowest possible price, manage energy use highest energy efficiency, reusing and recycling of the energy, and select low investment technology to meet the present requirements, environmental conditions, make use of waste generated within the plant as a source of energy, reducing the components of purchased fuel and waste. Now, what are the major systems to be considered when we talk about in building engineering part of it? Is the building inlet, where the more heat is going to come up in that part of it. HVAC system, electrical supply, lighting, boiler and steam, hot water system, compressor system, motors and drive, and special purpose process equipment. Now, what are the building spectrum in these days? This is a traditional system is on the left side of it, which is basically mechanical public and part of it. What are the latest developments going on in sustainability part of which is the today's demand, and the challenging part of it is the automation, power distribution, and the energy conservation part of it. That is the major part of the supporting business and sustainability. Now, designing energy systems. When we talk about, as I said you earlier, the energy efficiency systems is not only the power, it is also the lighting, and it is also the HVAC system, firefighting, and rest of it.
So I will not explain only the HVAC related because that is going to consume more energy than that. Okay, what are building HVAC system? Before I go to that one, here is our climate zone of Pakistan. But we are talking about from the north side from 1, 2, 3, and 4, and 5. That the highest part is going to be ambient conditions less compared to the middle part and the round part of it. Now, what are the building envelopes? What the major roles come up? I'm saying this is not might be not much interesting for you, but these are the related mostly to architects who building the building facade and envelope, which is taking the major energy heat conduction load inside of the building. And I always used to talk to architect to go with the high envelope part of it, and which is the major part come up, which we call it building thermal transfer value (OTTV), and that is the major part. On certain government standard they have fixed already, and you have to establish system meet to that OTTV values in that part. Okay, what are the conventional HVAC system which is right now going on in our country? So these are the fan coil systems, direct expansion, heat pumps, which is many coming up, variable system, chiller, condenser, cooling towers, and dry coolers. These are the major local HVAC system which are using, and still we are not looking at the energy conversion part. So I'm going to explain you other what are the new systems coming up in the world and which we have experienced there. Now when we talk about it, in normal HVAC system, this might be not much interest for you, but these are the supply fan, air side, all the energy transfer from one port to other port in this 5 part of it, that part. Okay, so that is the major part. Now the second come up is the cooling tower applications, where the less energy coming, but still we will go to the next slides of it, which is the energy efficiency system. Now what are the technology of a new cooling system? That is the application which are going to come up. This is hollow core slab cooling system. These are the buildings where you generate the heat and cool the core, the structure part of it. And that building is already done in Jeddah, and I have personally visited that building. And this is the company which is the UK-based company Thermotech. And this is they have established whole thing together. Almost 30 to 40% energy conservation is coming less part of it. There is a complete presentation on that part of it, which I can share you on later later. The other part is ground couple using air. That is a different system. That is ground water cooling amplifier. That is another system coming up. This is evaporative cooling, where you mix up the and certain part of air. You have to pass through this one and pass this process, and then you can again reduce the energy up to 30 to 40%. But today, till today, I have not seen an experience with the local application of those systems. I go everywhere and try to explain them, and I'm trying to use on my projects, one which I'm going to build with the Sialkot Zenova, and that's the lead application. When we come up the lead application, they are going with the energy conservation and restricting to that part of it. Now that's another one, water slab cooling. There's another system. More details are there after my presentation. If somebody interested, I can tell you because there is time restriction. So I'm not trying to elaborate more on that part of it. Okay, that's the beam sealing applications. There's another system, and that's the displacement ventilation system. This system is basically you have to cool down the air and the environment 1.5 meter. But I was telling about the conventional systems in the auditoriums. In most of the auditoriums now is done with the raised floor cooling based system, where you almost conserve the energy 30 to 40% compared to your conventional system. Because that is the way, because you don't need to supply the air at 20 degree, you need to supply the air to 20 degree. So your production cost of the cooling side is getting reduced at that part of it. So that is another system which is coming up. Now this is the other thermal energy storage system, phase change material, and that goes with the energy 2 different rates. When it's going to come up, you can charge the chiller in the night time, and you discharge the daytime when your energy side is higher side. So that's again energy management part of it. This is the way how you do it. This is isothermal storage system, where in the night time you have less ambient temperature compared to the daytime. Let's say we are talking about 40 to 50 degree in the daytime. In the night time is going to be 30 or 40, and you charge these chillers in the glycol side of it, and you discharge them in the peak load demand part of it, where your unit rate is highest part of it. So still you can manage the energy in that part of it and reduce the power side of it. Now that is the isothermal storage system which I explained earlier. There is a big presentation on that part of it, and my basic master thesis was on the same subject.
because the Sekiko, one of the guys over here, they know as well, they have limited the power consumption per square meter in Saudi Arabia one time because they want to put these systems in line together. So they have limited, so then developer was forced to go with those systems to meet with the power demand in that part of it. Now that's another VRF system, which is mainly, they are going to use it. That's another one VFT systems, where you go with the control part of it, reducing part of it. There's other one is heat recovery systems, which you take the waste air, whichever is going to come out, and then you have to cross this way, and you can at least 50 to 20%, depending on type of the building, you can save the energy in that part of it. There's another air-to-air thermal heat exchangers. This is another system. That is a run-on coil again. Whatever you do in the waste side of the air, which you are extracting it out, you can, if the air is the cold air, you can still use through the heat recovery and run-on process as well. Renewable energy technology, everybody was talking about that, but I just want to touch you on the HVAC system part of it. Solar energy and geothermal, that is the incoming technologies related to the HVAC system. So I'm just going to solar PV, I'm going to remember. Now this is solar technologies, when we are talking about that part. The solar radiation is here, then you can have the storage tanks, and you can use this absorption part of it, and then you can use this for the backup energy as the domestic hot water, another part of it, totally produced by the solar panels. Now that is the other application, solar technology, solar cooling technology, where right now, I have personally visited the Singapore, where solar radiation is very low compared to the rest of the other country at least. And those guys was going 30% of the cooling power, building cooling demand was met by the solar cooling itself. So there is a complete presently in that part of it. Now how it works? That is the difference. That you take the water under 20 degrees of the solar panels, and then you store it things over here, and then you go to the heat exchangers, absorption chiller at the same time, and then you back up the cooling, and you can have the ice storage tanks as well. It's a complete combined system together, which is almost 30 to 40% energy consumption is there compared to the conventional HVAC system, which is right now practiced everywhere. But especially in those countries, is a different part. That people are moving to the renewable energy, yes, there is a cost problem, yes, we understand it. But there is, in different studies that we made it, is almost 10 to 10 years maximum, because as the research and development of solar side of it, renewable technologies price is coming down, as the maximum return of investment time frame is also reducing in that part. Okay, so that is a complete system. Again, in that HVAC system. Okay. Now there's another one, geothermal heating and cooling systems. The people, whatever is happening 10 feet below the ground, no matter which part of the world you are, your soil ground temperature is 22 degrees, 20 centigrade. Okay. So whatever is, if you are going winter side or cooling side, that's vice versa is going to work in that way. So this is the way they are taking the energy in that part. In North America, in Canada, where I have the two offices in Canada, they are using this kind of energy as well, geothermal and the part. So this is the way they are working on that part of it, in energy conservation part. Now this is again sustainable cooling systems. This is in Scandinavian country they are using it, because they are taking the water, sucking from here, and then they are cooling down the plants, and they are discharging the part of it. So what's happening in solar cooling on the sea side of it, the deeper side of sea is the cold water temperature, and upper side is a little bit hot. So they are taking the water from the bottom of the sea, which is 10 to 15 feet of it, with the low temperature, making the heat exchanger and putting back to the sea at the same time. So that is again another cooling part of it, where you have energy conservation. So that's the crystal cooling lagoon they call it, as I explained you earlier. So that is the power plants. They are suction from here, cold water, and they are putting in that part of it, there, with the hot water. So again, there is the energy conservation in that part of it. Now, let's go back to where in Canada, because I have two offices there, and Canada is basically going to second in net zero buildings.
We aren't going with the 90 billion fund allocated. They are going with the 2030 with the energy net zero building part of it. And 2050 they want to go with the total net zero part of it. So those countries are going in that part of it. And now this is the first building which I have visited myself also, is a net zero. What is net zero? You are not consuming any energy from another part of it. Through the solar panels, there is 428 solar panels and it's in Montreal. So they are taking, I have visited that one and they are not taking any energy from another part. This is another building. It's not too from my office, by the way. I'm not just closing. This is net zero building here. Here is my office. So every day I look at this building where they have the event, and I visited them where they go to R80 insulation or heat resistant values, and the rest of it they are all going with the new systems, which is completely new and net zero buildings. Sorry. Anyway, so that is the altogether what I can say in terms of energy conservations related to the building services part of it, where new systems are coming up to 30 to 35% energy saving conservation part of it. And that's what I can say end of my presentations. Anybody, any questions have it? I'm ready to answer with that part. Yes, please. So I have two questions. Yes. First is you are using total solar in net zero. What is the mechanism for night? Is battery storage system? Second, how you are getting cooling from solar heating? Yes, good questions. And everybody has done in that way. Should I repeat or? No, I fully understand your question. Let me answer you one part of it. Thank you. Because the solar, what we are talking about, almost 10 to 12 hours solar radiation time, and then you are storing that energy in hot water form. Okay. In my previous, because my laptop is stuck, otherwise I could have gone back to that slide also. So you are storing the hot water in the storage tanks, and then you're circulating it and converting that energy back to the absorption chillers, which is the hot water chillers. And from there you're taking the cooling part of it. Okay. And the well-known manufacturer in the world, I have a study of a few years back in 2017 or 18, where they were going almost $4,500 per ton. The total system cost of the solar pump. But yes, it is costly. But now challenge is coming up when the Western nations are talking about carbon taxing, not carbon creating anymore. So here the problem comes. Yes. Part of the question is there any effective solar heating system as well? Yes, the solar heating is the same way. What you do, basically you transfer the hot water to the chillers and the coils, air and units, and then you can apply for the heating system at the same time. But in Pakistan, then if we talk about our local application here, there is a difference between 7 to 30%. 70% is cooling and 30% is more or less the heating load is coming up in that part of it. Any part you take in, northern area is a bit different, but compared to the Punjab and the southern part of it, that is the heating application in that part. Yes, you can have the hot water storage at the same time. It is a matter of only energy convergence. So solar panel is one part, solar radiation which you take it, and you store in the hot water storage tank, which is well insulated, and that remain over there. Whole absorption chiller पे. Is it practical during night? What? I mean, दिन में तो आपके पास सोलर की एनर्जी है ना, तो रात को क्या एयर कंडीशनिंग जो है उस पे उसी तरह एफिशिएंटली ऑपरेटिव है? उसी तरह एफिशिएंटली होगा क्या कि उसमें हॉट वाटर स्टोरेज टैंक में आपका वॉल्यूम जो है वो स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर हम इनिशियल कॉस्ट कैलकुलेट करें जी, तो व्हाट इज द एडवांटेज फॉर दिस एप्लीकेशन? बिकॉज अगर मैंने एक 10 kVA का या 5 kVA का गैस इंजन लगाया हुआ है, whether I am going to run it on LPG or CNG, सो अगर इस कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो मैं गैस जनरेशन को अवॉइड करके ये सोलर एप्लीकेशन पर क्यों जाऊँगा? Yes. This is my. Let me tell you, explain you on that part of it. Thank you. सर जैसे जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये अपना तारफ भी करवाए ना Sir, kindly. I'm ex-GM power plant for Elahi Electric Company and chief engineer for various textile. So मैंने 3 तरह के पावर प्लांट्स इंस्टॉल भी किए हैं, ऑपरेट भी किए हैं. तो कॉस्ट पर यूनिट इज़ वेरी मच इफेक्टिव
मेरे लिए बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जो कंज्यूमर है एक घर में जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए तो कॉस्ट पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हाइडल पावर भी लगा रहे हैं, विंड मिल जनरेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एज ए कंज्यूमर मुझे जो 33 रुपये से 38 रुपये कॉस्ट पड़ रही है, तो मुझे क्या एडवांटेज है आपके इन एनर्जी मैनेजमेंट का? अगर इस एनर्जी मैनेजमेंट में आप एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट में एफिशिएंसी का वर्ड भी ऐड करें, सो कंज्यूमर बेनिफिट लेगा उससे। आप पावर प्लांट लगाएं, थर्मल हो, सोलर हो, विंड मिल जनरेशन हो, हाइडल पावर हो, हम कंज्यूमर को कॉस्ट पर यूनिट से कंसर्न है। You see what problems come up. Let me explain you another part of it. Thank you very much. We are just looking to cope with our demand side of it. We are not looking at the Western nations, and this is my experience. I'm trying to tell you here. This is my country experience in these places. Whether you start from the UK and this is Syria and those countries and Canada right now, what they are talking right now, they are not talking about only the cost of that part of it. They are right now talking about carbon taxing. And we as a nation should be ready at that part of it. Look at it, Arabs. I have experienced in Saudi Arabia at the same time. They all go with thermal. Why they are going with the Neom city? Right now all going with the green buildings. Because they are already hitting and telling them that carbon taxing is going to come up. Only fight is going between USA and the China right now. But when they have sorted out their issues, problem is going to come up. Now, your basic question, yes, we in Pakistan, we have a problem, no doubt about it. Population is increasing, comfort level is, people are increasing at the same time. We are not meeting with the basic demand also. Earlier speaker, everybody was talking about power generation part of it, but we are not talking about energy conservation part of it. Those systems, we are not introducing it. Look at the Japan. Japan, from last 7 or 8 years, they are not putting more plants. They are conserving the energy and meeting the demand from the future demand to the conservation of the energy. They are putting the new systems together. They are introducing performance contracting at the same time. What is performance contracting? Energy conservation part of it. It is that you fix those systems and fixed cost what you have to pay. You have to go with the automation system. You have to go with the new system with the energy part of it. So new invention is going to come on that part over there in that part of it. But let me go to the last conclusion part of it before I go to questions. Look at the famous quotation of William S. Smith. This gentleman was an engineer, and 1769 he's talking about engineering is the science or economy of energy conservation. Look at this kinetic potential, and everything is covered in 1969. Till what we are talking about right now. So energy conservation is the major part as well. When you're looking at the generation part of it and future demand, you need to look at the generation part of it also. So that's what I can say you in terms of other questions. जी please, sorry. ये जो 79 वाला बंदा आप एडा ही वेला सी उन्होंने कंजर्वेशन सोचन दिया सी एक Yes. इतना relevant नहीं है. No, sir, no. नहीं, concept तो बड़े और भी. No, it's not concept. मैं आपको It's a quotation. नहीं, मैं वापस आपको ला रहा हूँ. जी. आपने अभी फरमाया कि जी कार्बन टैक्स वहाँ कनाडा में लग रहा है, वहाँ लग रहा है. नहीं, वहाँ नहीं लग रहा है. They are preparing for that. नहीं, yes. They are preparing. Yes. ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे जी मेरी एक प्रोपोजिशन है जी सर कि कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो एक तरफ तो गरीब है जी और दूसरा हम अपने कोटे से बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, ये याद रखिए. हमें इन गेमों में अभी पढ़ना भी नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट के मैं कहता हूँ नॉलेज के एंगल से हमें स्टडी करता रहना चाहिए. इसको प्रोफेसी ना करें कि जी हमें ये करना है, ये तो एडवांस कंट्री ने अपनी इक्विपमेंट बेचती है, वी डोंट वांट दैट. हमें तो अपना सॉल्यूशन लोकल ढूंढने हैं. सर प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं अच्छा बाकी रह गया जापान इज अगेन कम बैक टू पिछले दिनों ने जो बंद उसने अपने एनर्जी वो पावर हाउस बंद किए थे ना एटॉमिक, वो उसने दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं. इसी तरीके जर्मनी वापस आ रहा है. अच्छा बाकी जो पहले तो अभी जो कॉन्फ्रेंस यार डेवोस की और आजकल वो पेरिस एग्रीमेंट वहां से नहीं so they start from Montreal, yes. नहीं अब पेरिस का जो ठीक हो गया प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं. उसमें क्यों भाग गया अमेरिका, बैकआउट क्यों किया? एक मैं वो पैसे ही नहीं है उनके पास पैसे नहीं है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस कार्बन कंट्रोल.
अच्छा, इसी तरीके इंडिया इज ट्रीटिंग दिस, आपको डाटा है कि नहीं? सर मैं अच्छा, बाकी चाइना जो है ना, चाइना जो है वो थोड़ा थोड़ा लीडर के एंगल से उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट ऑल दी मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस पोल्यूशन जो कार्बन डाइऑक्साइड वो सारे पीछे भागे बिकॉज ऑफ ह्यूज क्वांटम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं आपको बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें ना बतौर फैशन कोई चीज़ें है ना कि जी वो ग्लोबल वार्मिंग ये इसमें अभी पढ़ना नहीं चाहिए, हमें तो अपना सोचना चाहिए। मैं तो प्रवासी कर रहा हूँ, अभी तो हमें डॉलर फ्री वाली सोचना चाहिए, कार्बन फ्री वाला ना सोचें। अभी हमें जाना चाहिए कोल के ऊपर, थर वाला जितना भी है उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर अगर पोल्यूशन है नहीं है जो भी है। बाकी सेल तो आप बना नहीं सके, अपना जो पीवी सेल है फोटोवोल्टाइक धड़ाधड़ आप ले रहे हैं, प्राइस कहाँ की कहाँ जा रहे हैं। शेख साहब आपका पॉइंट इज वेल टेकन। डाल दी तो सगीर साहब आप तशरीफ रखें। सर मैं इस पे ना रिस्पॉन्ड ना करें, अभी आप रिस्पॉन्ड नहीं करें। सर जी आप बैठ जाएं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट Management seminar proceedings are going on, and now we have our respectable speaker, Dr. Fiaz Chaudhary sir. Big man. Just his brief profile is with me. I would just save the time. Just about it. He is an electrical engineer with over 37 years of experience in integrated power system planning, management consulting, devising engineering solutions, preparing functional specs, and teaching in the utility as well as in academic environments. Since 2018, he is the director, LUMS and Energy Associate, and part of the electrical engineering faculty at LUMS. In addition, he is the CEO, Engineers Guild Private Limited, an engineering consulting firm established in 2017. He has established this engineering consulting firm, and he is offering the consulting services to different departments. Maybe he will be letting us know about the projects he has taken till today time. Better to know about that. Prior to this, he was a managing director, National Transmission and Dispatch Company, NTDC, is a part of WAPDA, in Pakistan for 1 year. Since the last 24 years, he has had other senior management and practice lead positions internationally, where he spearheaded and provided power generation and transmission engineering solutions to over 200 power sector companies around the world, including Canada, USA, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Nigeria, Saudi Arabia, Tanzania, Tajikistan, Uganda, and Pakistan. कनाडा में तो आप रहे हैं ना बहुत काफी देर, तो आपने दूसरा मिशन नहीं किया। कनाडा सबसे आपने पहले बोला। नहीं वो कंट्रीज के आगे ना, बट यू वर्किंग देयर आल्सो इन कनाडा। जी जी, यहाँ मुझे अपनी वो प्रोफाइल का मतलब नहीं था, असल बात जो करनी है। ठीक है, चलिए दैट्स ठीक है, गुड। Now I would like to request him that he should come over here and explain his viewpoint about the Light off. प्रोफेशनली जो बातें मुझे थोड़ी ट्रबल करती हैं, सो वो मैं थोड़ा सा आज जिक्र करूंगा कि एज एन इंजीनियरिंग कम्युनिटी where did we go wrong, और हमें अपना कोर्स चाहिए, गलतियाँ इधर उधर ढूंढे, we should find flaws in our own backyard. जब तक आप हमें रियलाइजेशन खुद ना हो कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं, तो तब जाके कोई रास्ता सीधा हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, I joined LUMS in February 18, where the very first thing I was concerned
कि हमारे पास एक सही जो पावर सेक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे पास नहीं, जो कि इंडिपेंडेंट व्यू दे। गवर्नमेंट के अदारे वो ज्यादा जो कल्चर बन चुका है वो जी हुजूर की तरफ चले गए और जो बॉस ने कह दिया वो कर दो। मुझे इम्पोर्टेंट ये था कि एक लम्स में, हालांकि वो लम्स इलेक्ट्रिकल की ठीक है डिग्री तो होती है, लेकिन वो पावर सेक्टर से काफी दूर है। उसका जो आप जनरल लम्स के बारे में अगर जानते हो, तो मैंने कहा जी यहाँ लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट बनाना है और उसके ये 4 एरियाज होंगे। एक तो ये पावर एंड एनर्जी प्लानिंग का काम हमने करना है, फिर हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है पूरे सेक्टर की, ये हमने उसके विजन में रखा। फिर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन बहुत हो रही है या अभी होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नई आ गई हैं, तो हमें यहां उसको हेल्प करना है सेक्टर को। और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज ऑन द जनरेशन साइड, उसके बहुत अभी वो रेट्स कम हो गए हैं तो बड़ी प्रॉमिसिंग है, तो वी शुड सपोर्ट दैट एंड आल्सो अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको रेजोल्यूशन करके काम किया जाए। तो ये 4 मेजर एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए कि गवर्नमेंट सेक्टर को इंडिपेंडेंट प्लानिंग करके दी जाए, या अगर वो किसी ने प्लान किया हुआ था उस पर ऑब्जर्वेशंस करके उस पर गवर्नमेंट को चैलेंज किया जाए कि ये काम ठीक है, ये गलत है। इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने ये एनर्जी इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। तो ये हल्का सा आप कह लें कि पाकिस्तान आने के बाद अब एक ही स्लाइड में आप देख लेंगे कि हमारे पिछले कम से कम 10 साल का जो सिनेरियो है पावर सेक्टर का, वो कहाँ है। एवरीबडी अमंग अस, हम कहते हैं कि एक हुकूमत आती है या दूसरी आती है, द पावर सेक्टर इज इन शैम्बल्स, वी आर नॉट डूइंग एनी गुड जॉब। हमें क्या प्रॉब्लम नहीं मिल रही, हमें कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लोग, व्हाई कैंट वी फिक्स इट। ये हमारे हाथ में है या नहीं है। क्या हमारी कोऑर्डिनेटेड, ये हमारे जो अदारे बने हुए हैं इंक्लूडिंग आईईपी या IEEE और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ये सारे बेकार अदारे हैं। जो काम जिस अदारे ने करना था वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। तो कहां गड़बड़ है, ये गेम किसके हाथ में है। अभी जैसे आपने हल्का सा जिक्र किया कि ये जो हमने चू चू का मरबा बना दिया है, आपने ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि ठीक है वापडा था, कुछ काम कर रहा था। अब वो पावर सेक्टर की 25 कंपनियां हैं और फिर भी हम उसमें बड़ी स्पेशलाइजेशन भी होगी, लेकिन बात बन नहीं रही। तो कहां गड़बड़ है। तो इसको आज मैंने कहा चले एनर्जी मैनेजमेंट के हवाले से मेरी स्लाइड सिर्फ 5 है, तो इसलिए कुल आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा मेरी तकरीर का। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये 2013 को 88 टेरावाट आवर्स, ये हमने ओवरऑल NTDC के सिस्टम में, कह लें कि इलेक्ट्रिक को छोड़ के 88 टेरावाट आवर्स हमने इस्तेमाल किए एज ए कंट्री। अब हमारे पास उस वक्त जनरेशन की स्केर्सिटी थी, हम लोड शेडिंग का दौर था। सो इसका मतलब है हमारी डिमांड उस वक्त थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वी कुडंट सप्लाई। अब ये चलते चलते हमारी ग्रोथ होती रही 2018 में। अब 2018 में हमने जो आपकी स्केर्सिटी थी, जो आपकी कमी थी, वो आपने पूरी कर ली।
So you had enough generation to meet your demand. 2018। अब उसका नंबर मैं आपको बताता हूं। हमारी डिमांड, पीक डिमांड आप कह लें, जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन हमारी कोई 23,000 थी। सप्लाई का जो नंबर है वो 20,000 था। क्योंकि आप आज सर्दियों में या गर्मियां हो, देयर इज एन एनवेलप जो आप सप्लाई नहीं करते। आई डोंट नो आप सबको इस बात का पता है या नहीं पता कि तकरीबन सर्दियों में 2 से 2,500 ऐसा एनवेलप है जो आप सप्लाई नहीं करते। गर्मियों में वही एनवेलप 3 से 3.5 हो जाता है, वो आप सप्लाई नहीं करते, जिसको हम कहते हैं हाई लॉस फीडर्स। वो ऐसी डिमांड है जो आपको पैसा नहीं देती है, तो आप उनको सप्लाई नहीं करते, तो यू डू रोटेटिंग लोड शेडिंग। नो मैटर आपके पास 100,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगी हो, बट यू डोंट सप्लाई। ठीक है, जब तक वो कम्युनिटी या लॉ एंड ऑर्डर से व्हाटएवर दैट रीजन है, जब तक वो सप्लाई नहीं, आपको पैसे नहीं देंगे, आप उनको सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये डिबेट होती है कि भी उनके लिए प्लान किया जाए, जब हमने सप्लाई नहीं करना तो उसके लिए क्या इंतजाम किया जाए कि नहीं किया जाए। तो ये एक सवाल आता है। अब हमने अभी आपको देखेंगे जो लास्ट 2 नंबर्स हैं वो बहुत एकदम बहुत बढ़ गए। वो 130 है और 143 है जो जून 30 को खत्म हुआ, 143 टेरावाट आवर्स और 130 टेरावाट आवर्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है 18, 19 और 20, 3 साल हमारी डिमांड सेम रही है, लेकिन जनरेशन हर साल 18 में कुछ और थी, 19 में 2,500 4,000 ज्यादा थी और 20,000 में ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपके पास जनरेशन तो पूरी हो गई 18 में और आपकी डिमांड नहीं बढ़ रही। अब मैं आपको नंबर बताऊंगा 2015-16 में। 2015-16 में ओवरऑल, जैसे हम घर में गाड़ी लीज करते हैं, तो जब आपने लीज करके ले आए, उसकी लीज की पेमेंट तो देनी है। हम उसको कहते हैं अपनी पावर सेक्टर की दुनिया में, ये हमारी कैपेसिटी पेमेंट है कि वो हमने प्लांट लगवा लिया, अब उसकी कैपेसिटी पेमेंट तो देना है, फिक्स चार्जेस की शक्ल में। ठीक है, लेकिन जब वो प्लांट चलेगा तो वो उसकी एनर्जी पेमेंट हो जाएगी। अब 2015-16 में हमारी कैपेसिटी पेमेंट जो थी वो 255 अरब थी, साल की 255 बिलियन रुपीस। 18 में वो हो गई, जब नए प्लांट कुछ आ गए, अबाउट 550। 19 में हो गई वो 700 के करीब। 20 में हो गई वो तकरीबन 20-21 में ये 900 को क्रॉस कर गई। इस साल ये जो 21-22 या ये जो साल है, ये 1 ट्रिलियन से ये तजावज कर जाएगी, ये कर गई है। अब उसमें कहां, लेकिन एनर्जी हमने वही बेची। आप देख लीजिए 121 टेरावाट आवर्स, 123 टेरावाट, 122 टेरावाट आवर्स। तो उसमें कुछ ना कुछ, चले आप पेंडेमिक को भी ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी वही रही। लेकिन कैपेसिटी पेमेंट में आपका ऑलमोस्ट 500 बिलियन ऐड हो गया। तो ये आपको जब कहते हैं ना वो सर्कुलर डेट कहां से आ गया, हम ब्लेम करते हैं जो T&D लॉसेस बढ़े ने, तो हमें ये बात समझ नहीं आती कि ये हमने खुद इंट्रोड्यूस कर दी है। सो सर्कुलर डेट हमने 500 बिलियन ऐड कर दिया बिटवीन 2018 एंड 20, एंड वी कुडंट सेल दैट एनर्जी जो कि हमने जिसका इंतजाम किया था।
अब हमारा जो टैरिफ है, टैरिफ हमारा है कंपोजिट टैरिफ है, 2 पार्ट टैरिफ नहीं है कि आपने वो जो एनर्जी जो आपने बेची तो उसी में से कैपेसिटी पेमेंट आपने करनी है। अगर वो यूनिट नहीं बिकेगा तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट आपने रिकवर नहीं की। तो वो जो 500 बिलियन ऐड हुआ कैपेसिटी पेमेंट का, वो 3 सालों में हम रिकवर नहीं कर पाए, तो वो सीधा आपका सर्कुलर डट जाएगा। ठीक हो? अच्छा, अब ये लास्ट जो आपको अंदाजा हुआ होगा कि थोड़ी इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया, कुछ कैप्टिव पावर प्लांट को वापस लाया गया कि आप ये ग्रिड से एनर्जी ले लें, क्योंकि हमने प्लांट लगा लिए हैं, वो भाई आप उस पे शिफ्ट हो जाए, ताकि हम वो पैसा जो सर्कुलर डेट में जा रहा है हम उसको रिकवर कर सकें। ये बैटरी तो भाई इधर पहले ही लो हो रही है, अभी तो काम स्टार्ट ही हुआ। Whatever कर लो, but this is our supply side का एक इशू आ गया है कि अब हमारी मतमारी हुई थी, so we based our base load जो हमारा था वो हमने इंपोर्टेड फ्यूल पे हमने बहुत ज्यादा उसको बुनियाद बना लिया। खा वो हमने इंपोर्टेड कोल हो गई या इंपोर्टेड जो हमारे से बैठे हैं यहाँ, या वो RLNG बेस्ड प्लांट। अब हमारे पास हमें पता था कि गैस हमारी स्केर्स हो रही है मुल्क में, हमने सुई गैस बहुत अच्छी इंजीनियरिंग करके बाकियों हम दुनिया से लेते हैं स्पॉट में $40 की 1 MMBTU, $40। क्यों जी ऐसा ही है प्राइस? तो बेच की कितने रहे हैं? आपका जो पहला स्लैब है जिसपे आप आराम से बड़े तसल्ली से खाना पकाते हैं, आप कितने की खरीदते हैं पहला स्लैब? किसी को याद हो नंबर? 121 रुपए। 1 MMBTU you pay to the government 121 रुपए, less than $1, but the government had to buy for $40 for that MMBTU। बीच में लॉसेस होंगे, ट्रांसमिशन के दुनिया जहां के खर्चे। अब ये देख लें, ये डिस्पैरिटी हमने क्रिएट आप हमारी आंखों के सामने हो रही थी और होती जा रही। सो चलिए, अब हमने वो गैस अपने पिछले 50-60 साल में एज एन इंजीनियरिंग कम्युनिटी वी सिंपली वेस्टेड। अब वो वैसे ही कम हो रही। तो वो जो बात अभी काम हो रही है कंजर्वेशन। सो दुनिया जो हम इतने गरीब मुल्क हो के अयाशी छुपे हैं, तो वो जो इतने एडवांस नेशंस हैं वो कंजर्वेशन का सोच रहे हैं, सानू फिक्र ही नहीं। सो असल उनका जो मकसद था, ठीक है जा साहब सगीर साहब जी, तो वो भले आप जो मर्जी सोल्यूशन हो, भाई कंजर्वेशन इज उसको भी सोचना है, सिर्फ सप्लाई साइड का नहीं सोचना, डिमांड साइड का भी सोचना। मैं अभी आपको स्ट्राइकनिंग नंबर बताऊंगा कि ये हमारा हमने इसको अपने लिए कर क्या लिया, मुसीबत क्या खड़ी कर ली। अब ये देखिए मेरा ग्राफ है, और ये NPCC से, क्योंकि मैं बाई चांस क्योंकि उसका MD रहा हूं, तो अभी तक कहीं ना कहीं से क्योंकि लम्स इंस्टीट्यूट ने मुझे किया हुआ है, तो ये हमारे पास डेटा आता है। अब इस डेटा को आप देखें कि जो कि ये 17 है जी और ये 22। आप देख रहे हैं इसकी ये जो बॉटम लाइन है, ये बॉटम लाइन कांस्टेंट है यहां ऐसे ही। इसको हम कहते हैं बेस लोड। पिछले और अच्छा ये डाटा मैंने प्लॉट तो नहीं, लेकिन ये 13-14 से ये ऐसा ही है। 7000 मेगावाट was your base load for the last 8 years। और ये दिन की जो सर्दी, ये 4 महीने सर्दियों के हैं, ये 4 महीने सर्दियों के, 4 महीने सर्दियों के, नो चेंज whatsoever, नो चेंज। ये नंबर 11 साढ़े 11 का नंबर होता है ऊपर वाला। तकरीबन दिन में कमर्शियल लोड, 2 लोग खुल गए, दफ्तर खुल गए, बिल्डिंग चालू शुरू हो गई, कारोबार शुरू हो गया, ये 4-4.5 की डिमांड आती है। सो सिर्फ पिछले साल क्योंकि वो इंडस्ट्री को थोड़ा बेनिफिट दिया, इंडस्ट्री कुछ चल पड़ी,
आपका वो जो बेस लोड था वो 8000 हो गया, 1000 बढ़ गया, ये 12000 हो गया। तो ये पीक हाई का एक चीज। आप क्या ये छुट्टी चले गए थे अपना स्विट्जरलैंड? क्यों जी? इन महीनों में क्या सारा पाकिस्तान छुट्टी तो नहीं ना चला गया? 4 महीने हैं, कोई 4 दिन नहीं है। सो इसका मतलब है कि जो हमारी असल डिमांड जो सर्दियों की जो इंडस्ट्री वो 8000 में से को 5-6 हजार इंडस्ट्री होगी। हमें एज ए कम्युनिटी, एज ए कंट्री, हमें क्या करना है? ये जो डिमांड है, ये जो 12 से, किसी को नंबर याद है जी? अखबारों में भी आया कि हमारी पीक डिमांड इस साल कितनी गई है जून 30 को? आप 23 हाँ जी 23,000। ये सप्लाइड नंबर है, डिमांड की बात कर रहा हूं। वो तो हो गए ना जी, गैस नहीं हैगी तो हम प्लांट तक खड़े ने, ठीक है, so much generation हमारे पास मौजूद है, but we could not run it because we don't have the money. 30,000। so डिमांड का नंबर इस साल का जून 30 का 30,000 है। so ये जो 12,000 से 30,000 का नंबर है, ये क्या नंबर है? कूलिंग लोड। अब 18,000 मेगावाट। So as an engineering community, don't you think that we failed this nation? We created this disparity. As an architect, as a civil engineer, as an electrical engineer, as a mechanical engineer, ये जो 18,000 की कंजम्पटिव डिमांड है, आप डॉलर जला के आप अपनी दीवारें ठंडी कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की। सो एज ए कंट्री 18,000 मेगावाट हमारी कूलिंग डिमांड है, और जो पिछले साल का डेटा पीछा प्लॉट सारा कर लो। अब देखना ये कि मैं ये 18,000 मेगावाट कूलिंग लोड, क्या मैं बिल्डिंग डिजाइन में उस वजह को खत्म करूं जिस वजह से ये मेरी डिमांड बढ़ रही है, या मैं ले आके एसी ठोकी जाऊं? क्या मैंने एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनानी है, या मुझे प्रॉब्लम पहले क्रिएट करना है? आप डीएचए के बायलॉज देख लो, आप एलडीए के बायलॉज देख लो, 35 फुट से आप ऊपर नहीं जा सकते 3 मंजिलों में। वो कहने ने फोर्स कर रहे हैं आपको डब्बे बनाओ। That's what अब एज एन इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूशन का काम है कि क्या आप उन डब्बों की तरवीज देते रहेंगे? आपने एज एन इंजीनियरिंग कम्युनिटी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो गई या हमारी आईपी, हमने इस मामले में क्या कंट्रीब्यूशन की है? कहां हमने एफिशिएंट हाउसिंग डिजाइन के लिए कोई मुकाबले कराए हैं? कहां हमने इस बात की रियलाइजेशन लोगों तक दी है? ठीक है, अब हम इंतजाम करने चल पड़े हैं, चाहिए या नहीं चाहिए। अब वो अल्टरनेट मींस ऑफ एनर्जी वो मिल जाएगी आपको, कभी वेस्ट से मिल जाएगी, कभी सोलर, ये टेक्नोलॉजीज बदलती रहेंगी। लेकिन आप बच्चे को वो चीज लेके देते हो, भाई तेरू हाले लोड नहीं। क्या आप इन्हीं के 2 साल के बच्चे को कहो कि पोर्शे ले दो? उनके यार he doesn't have that age, ड्राइविंग उसको पता नहीं। So you can't buy a Porsche and an SUV for that kid. तो पहले तो नीड सही से आइडेंटिफाई की जाए, और ये क्या मेरी इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन कर रही है जी? ये 18,000 कूलिंग डिमांड ये पोस्ट पी के सौन दे बुतरादफ है। हमने अपने रोशनदान वाले जो हमारी पहली जनरेशन का जो डिजाइन था, हमने रोशनदान वाले घर खत्म किए, हमने वो खिड़कियां या ऊंची छतें खत्म की, हमने थोड़ी सी आसूदगी आ गई, हम सोशल प्रेशर में जो 5 एसी ला दो, वी नेवर इवन नबी जाके इन्वर्टर। अच्छा, अब हम इसका जरा नंबर जरा, अगर हम इसको 1000 मेगावाट एक दिन के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट कर लें, एक दिन
1000 तो वही जो पीकिंग आपको जो मार्जिनल प्राइस आपकी और ये जो ऊपर वाली डिमांड है वो सबसे एक्सपेंसिव प्लांट चलता है, आपको पता है। सबसे जो नीचे वाली डिमांड होती है सबसे सस्ता चलता है। मेरिट ऑर्डर आप उठा के देख लें तो 100 रुपए का यूनिट कम से कम पड़ता है जो ये मार्जिनल प्राइस है। एक दिन में अगर 1000 कम सप्लाई की 1 बिलियन रुपया एक दिन का बचता है, एक दिन का। 365 चलो मैं कहता हूं गर्मी है 6 महीने हैं तो 1000 जरा वो 180 अरब तो बच गए सिर्फ इस चक्कर में ऑपरेटिंग कास्ट में। So those are the kind of staggering numbers we should be worrying about. हमें करना क्या है? हर बंदा उठ के प्रोजेक्ट लाने दे चक्कर च खाओ पंजाब गवर्नमेंट होवे, खाओ केपी को कहना मेरा हाइड्रो ला दे, सिंध वाला कहना मेरी विंड ला दे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दी यू नो, क्योंकि किसी को ये क्योंकि डिमांड हमने जो क्रिएट कर रखी है अपने लिए उसका भी कुछ ध्यान करो, ठीक है। सो हमारा फोकस कहां है, हमें ये देखना है। अब वही मैंने ये फाइनेंशियल नंबर ही किया था कि अगर आप पीक डिमांड का 1 घंटा शिफ्ट कर दो सिर्फ कि यार वो वाला जो है उस सिर्फ मैं ऑपरेटिंग कास्ट में मुझे वो ना चलाना पड़े 1 घंटा, वो वही एनर्जी पूरी सप्लाई करनी है लेकिन वो घंटा सिर्फ शिफ्ट कर दो किसी और आवर में, मुझे वो पीक ना, तो उसकी ऑपरेटिंग कास्ट आप देख लो तो वो 6.3 बिलियन रुपए बनते हैं। तो आप यानी सो दिस इज एक गरीब मुल्क है, हम इतना इनएफिशिएंट तरीके से इसको रन कर रहे हैं। एक बंदा जनरेशन कहता लाई जाओ, ठीक है, जेड़ी मर्जी लाई जाओ, आई डोंट केयर, ठीक है। अब इन बातों को अगर आपने एज एन इंजीनियरिंग कम्युनिटी इनको रियलाइजेशन नहीं की, ठीक है, और वी लेट थिंग्स यू नो लेट दीज थिंग्स हैपन, तो हमारी जो आइंदा जनरेशन होगी वो क्या, हमें हमारा जो एज ग्रुप है, आई एम सॉरी टू से वी रियली फेल्ड दिस नेशन। हमने कंप्रोमाइज किया है, हम ही ने वो जाके साइन किए हैं जो अभी हम, मैं तो अभी 61 का हुआ, ठीक है, तो मेरे ही एज ग्रुप जो अभी रिटायर हो, कभी को हो रहा है, को हो गया, वो ये कौन मैनेजमेंट में है भाई पिछले 5-10 साल में, ये हमारा ही एज ग्रुप है। तो ये जो हुआ ये किसने होने दिया, हम ही ने होने दिया। अच्छी बात जी, अब करना क्या है, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। पहला काम, घर में, दफ्तर में, आपने हर जगह एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी की ना तो ओनली बात करनी है, उसको प्रैक्टिस करना है। इंडिविजुअल पे आपने इसको इंप्लीमेंट करें। फिर क्या करें, एक मीडिया कैंपेन छोड़ एक कमेटी बनाओ, व्हाटएवर थिंक टैंक बनाओ, कैसे हम ये अपने बिल्डिंग कोड्स को तब्दील करवाएं थ्रू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, व्हाटएवर। अभी हम लोग कुछ रिटायर हो गए हैं, ठीक है, मैं तो चले कुछ कामों में जरा ज्यादा बिजी हो गया हूं, तो लेकिन वो लोग जो हमें से ऐसी हमारा इंस्टीट्यूट उनको अप्रोच करे कि वो लोग जो रिलेटिवली वो जो स्पेयर टाइम कुछ दे सकते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन आ गए, रियलाइजेशन आ गई, तो उन लोगों को चे जाए कि चौक बह के हुक्का पीण, ठीक है, वो एक थिंक टैंक बन के वो अपनी कुछ एक्शन शुरू करें। तो जो कि हमने कैसे इसको बायलॉज को कहां से सिरा किथों फाड़ना है, ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो भी हमने स्टैंडर्ड्स कुछ बना लिए, पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड PQSA और ये वो, अब 40 वाट का फैन हो, भी इतना ये अप्लायंसेस की जो बात है कि हमने हमारे वो जो कूलर, डेजर्ट कूलर का जो कॉन्सेप्ट था, अब छतों पे बड़ी डक्ट लग के, मैं कहता हूं मार्च अप्रैल मई जून, यू डू नॉट नीड टू टर्न AC even one time, Exactly. ठीक है। So why we are spending that much? भी अफोर्ड, अच्छा जो अफोर्ड नहीं कर सकता कहना 5000 लैन में अनु दे लांगे या मीटर रेट इनु दे लांगे, यू सी, क्योंकि बिजली बहुत महंगी होगी। So we have found ways to waste things, तो हमें इन बातों का ध्यान देना है।
एज एन इंजीनियरिंग कम्युनिटी। फिर इंसेंटिव आप टैक्स रिबेट दे दें, जो बंदा ये काम करे एफिशिएंट अप्लायंस इस्तेमाल करे। कनाडा में, क्योंकि मैंने बड़ा वक्त गुजारा, 22 साल हो गए मुझे उधर, वो जब शुरू में ये एलईडी बल्ब आए तो वो $5 की आपको पता है रिबेट देते थे, ठीक है, अभी भी देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 27,000 हमारी डिमांड थी 2006 में, जो आज 22 से ऊपर नहीं जाती है। सो हम लगे हुए इस भेड़ चाल में, ओ प्लांट लाओ, मेरा प्रोजेक्ट लाओ, ठीक है, वो डिस्पैच मुनु सावरन गारंटी दियो, ठीक है, तो वो कौम लगी हुई है कि मुझे यार ये चाहिए ही क्यों। सो 5-7 हजार, अब 2006 कहां और 2018 या 16 साल हो गए, और डिमांड बढ़ने की बजाय उन्होंने कंट्रोल की। और ये है वन ऑफ द एडवांस्ड नेशंस। अच्छा, आप क्या तवज्जो करो कि वो जो 7,000 है, जो आपकी बेस लोड डिमांड जो 8,000 है, उसको 12 करो। सारी पॉलिसीज अगर कुछ करनी है उन्होंने 14 करो। वो बस ले ली है, सवारियां है नहीं, तो वो अपनी सवारियां बढ़ाओ। सो उस जो प्लांट लग गए हैं उसका प्लांट फैक्टर बेहतर करो, ठीक है। और फिर हम अपने लिए और चैलेंजेस इकट्ठे कर रहे हैं कि वो जो हमारा जो रूफटॉप सोलर, ये पहला सोल्यूशन था, वो हमने क्या किया है, वो उसको डेटा मीटरिंग कर रहे हैं। तो वो जो एनर्जी वो हमसे जो ले गया सिस्टम से, उसकी कैपेसिटी पेमेंट कौन देगा, कोई और देगा हो। सो हमने उसको स्मार्ट तरीका निकाल लिया है चोरी करने का। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पार्ट्स, इसको ओवरऑल डायनेमिक, ये टैरिफ क्या बना है। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है, उसका इंडिजिनस हम डेवलपमेंट करें, बैटरीज को लाके व्हाटएवर हम करें कि भी हम अपने फ्यूल को कम से कम इस्तेमाल करें। 44% ऑफ योर डीजल पेट्रोल और ये एनर्जी जो है वो हम अपने ट्रांसपोर्टेशन में जाया करते हैं। तो वहां हमें बेहतर ऐसे एरियाज ढूंढने के भाई मेरी डिमांड कम हो, ठीक है जी। अपने घर में सारे फैंस को टेस्ट करवाएं, अपने पे इंप्लीमेंट करें कि यार ये क्या लगा हुआ, ठीक है, उसको देखें, उसकी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि यार ये कुछ 70 वाट का अगर 40 वाला ले आऊंगा तो मेरे 3 महीने या मतलब 6 महीने में या साल में या 2 साल में मेरी कीमत पूरी हो जाएगी। सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू। फिर आपने डिमांड रिस्पांस, सिस्टम लेवल पे डिमांड रिस्पांस की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडस्ट्री को इंसेंटिव दें, आप इस्तेफान कर लें इस वक्त। तो वो जो बैठी हुई इंडस्ट्री है पिछले 7, मैं आपको नंबर दिखा दूं, वो दिखाया जैसे मैंने, वो 13 से या 17 से 7,000 हमारी वो इतनी इंडस्ट्री है। और 7 को 14 क्यों नहीं हो सकती, जो अगर इस मुल्क ने सस्टेन करना है इकोनॉमिकली। एसी चला के, ठंडी हवा खा के इस मुल्क का तुसी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स वेयर आवर अटेंशन शुड बी। तो भी फ्यूल स्विचिंग, अब RLNG को हमारे पास वे साहब बलूचिस्तान में रेडियम सबसे बेहतर, भी सोलर लगा के वहां सुई गैस का पाइप हमारा वेला हो गया, उसमें काम क्योंकि कम है, तो वहां क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए, हम अपना जितनी भी हमारा ये गार्डन वेस्ट जो गन्ने का है, ये मेथनॉल, वहां से उससे हम हाइड्रोजन कर सकते हैं। तो 30-40% अगर आपके हम उसको मिक्स कर दें अपनी गैस में, तो योर प्लांट विल रन। और अगर नहीं तो उसमें व्हाटएवर मॉडिफिकेशन इज नीडेड दैट शुड बी डन, कि इंडिजिनस 40% रिप्लेसमेंट बड़े आराम से हो सकती, बड़े आराम से। कि वो जो हम अपनी वो RLNG चीज हम इंपोर्ट करें, हम क्या करें, हमारे पास हाइड्रो पोटेंशियल इतना है, ठीक है, उसको लिक्विफाई, मतलब वहां हम जनरेट करके ट्रांसमिशन लाइन क्यों बचानी है, हम हाइड्रोजन के बड़े बड़े डोजर और पाइपलाइन बिछा दें उसको। जब मैं कहता हूँ नया काम क्यों करें, जो ऑलरेडी सुई गैस की पाइपलाइन है उसमें घुसा दें उसमें, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके मैक्रो लेवल पे आप दुरुस्त करने की जरूरत है। तो अल्लाह आपका भला करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। तो ये मैं चाह रहा था कि एनर्जी के सारे बंदे
इंतजाम से लगती है जनरेशन लाओ तो जनरेशन लाओ, वो मैं कहो को जनरेशन ना भी लाओ तब भी गुजारा हो सकता। ठीक है जी। सो 18,000 मेगावाट आपने नंबर याद रखना है, प्योरली कूलिंग लोड है और वो चंद महीनों के लिए। तो असल हमें जहां काम करना है इस मुल्क का, वो सर्दियों में 8 से 16 करो, फिर मानता हूं, फिर मेरे लोग 7 जनरेटर और लाओ, आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। वो कैसे करेंगे 7 से 16? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो अभी हमने बात की कि हमारे पास ट्रस्ट लेवल खत्म, ठीक है, तो हमें वो फजा कायम करनी है। हमने क्या किया एज ए कंट्री, 70s में हमने क्या किया, जिसकी छोटी मोटी जो इन्वेस्टमेंट कब्जा कर लो, दैट्स वेयर दिस नेशन हैज गॉन रॉन्ग कि वे थोड़ी फैक्ट्री है फाड़ लो इन्हों। सो हमें जो पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत ने हमें ज़हनी तौर पर कब्जा ग्रुप बनाया और फिर हमने जो दूसरी गड़बड़ कर दी, हमने सऊदी अरब से दोस्ती कर ली। उसमें हमें क्या हुआ, वो 70s में वो साडा असी भी पिंड दे छोटे मोटे चौधरी, उन्हें वो चौधरी साहब आ मुंडे नूं भेजना बाहर, वो मेरे को ही पैसे लैके मुंडा गया जी तरखाना दा लोहार दा, कहना बाहर चला गया। इजी वहां तो 100 रुपया 100 रियाल लेते थे बल्ब लगाने का। अच्छा वहां से इजी मनी आ गई थोड़ी शुरू में, बाद में तो उन्होंने वो भी सियाने हो गए। अच्छा लेकिन हुआ ये कि वो जो पैसे जब आपके पास इजी आया, उन्हें सिर तर गया ऐसी बगल से मारे VCR, हाथ च फड़िया टेप रिकॉर्डर, ठीक है ना जी, पीछे एक बंदा जी टीवी लेके आ रहा, सो उसने जो फ्रस्ट्रेशन थी अपने निकाल, ठीक है, उसने असेशें खरीदी अपने लिए और लिया के चौधरी साहब के घर के सामने वाला प्लाट उन्हें पिंड चो जो छड़ गया सी, वो 3 मंजिला उन्हें कोठा पाया, उत्थे लिया के उन्हें AC ठोकिया, ठीक है जी। So that's where we copied that model, by the way. DHA is copying that, the same guy who built that little house or dabba, that's what he could think of. So the DHAs and our जो भी barrier town or whoever, LDA, they copied that model, and we kept on laughing at it. And we kept on smiling at it. So as an engineering community, you cannot believe yourself. We did blunders. ठीक है जी। तो वो जो हमने ये जो काम किए हैं और हम अपनी आंखों के सामने हमें होते हुए नजर आए, असी चुप रहे। 18,000 फर्दर सेग्रीगेट कीता है कि कोई थोड़ी कैटेगरी कूलिंग लोड, कूलिंग लोड, एयर कंडीशनिंग आ गई, कुछ इंडस्ट्री तो ही है ना, प्योर कूलिंग लोड है 100% बढ़ रही है। पिछले 10 साल का डेटा दस रहे नहीं हां, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਫ ਲੋਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ सर एक गुजारिश है सर जी मैं जी अपनी मेरी बात खत्म, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। 1 by 1 सवाल पूछे, इनको भी कुछ जरा मौका दे। उमरिया तक बोतल पे पानी पीछे बैग इतनी इधर बैग 6 अरब ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 6 अरब रुपया 1 घंटा पीक शिफ्ट का था, ये पर डे है पर मंथ है, ये तो सालाना नहीं ना कि अगर ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ 1 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ टैरिफ मतलब ऑपरेटिंग कास्ट घट जाएगी, इतनी फ्यूल सेविंग होएगी, इकोनॉमिक डिस्पैच ओवर ईयर जी वो मैं कहती जी 1000 करोगे, 1000 मेगावाट करोगे अगर तुसी डिमांड साइड मैनेजमेंट इन 24 आवर्स यू विल सेव 1 बिलियन 1 अरब रुपया एक दिन। अगर इस बार मैं नहीं करना, डॉक्टर साहब माइंड का प्लीज हैंड ओवर करो। एक प्रोटोकॉल होता है, पहले जरा उनको सांस लेने दें, उन्होंने काफी एनर्जी खर्च की है, समझाने की कोशिश सारे फॉल्ट तो समझाने की कोशिश की है ना, एनर्जी तो उनकी खर्च हुई है, तो थोड़ा रिलैक्स मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और सुन रहे हैं। सॉरी 1 by My question is, मैं तो the mechatronics automation engineer हूँ। My question is, sir,
कि पाकिस्तान में आप सोलर एनर्जी को कहाँ देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या इसका डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन क्या होगा, हमारा एनर्जी मिक्स क्या होगा, क्योंकि इंडिया चाइना दे आर ऑल अपना जो एनर्जी मिक्स है बढ़ा रहे हैं और फोकस नंबर 1 सोलर पे ही है जी। अभी इन आवर कंट्री सर कुछ कन्फ्यूजन्स है कि ये फ्यूचर सस्टेनेबल एनर्जी नहीं है या हमें सूट नहीं करता या करता है, मतलब अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है जी। आप कहाँ देखते हैं इसको? और इसमें मैं सर एक और एंगल को टच कर रहा हूँ, एज एंटरप्रेन्योर हमारे जो जनरेशन यंग जनरेशन है वो कैसे इसको मतलब अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकते हैं। थैंक यू सर। दूसरे सवाल का जवाब पहला सर मौजा ही मौजा मतलब है, तो पहले का सवाल का जवाब पहले मिल गया, इसका मतलब है सोलर लगना है। अब पहले अब ये सोलर ऑन इट्स ओन was not competing with fuel component of generation। बात समझ आ रही? जब $7 की RLNG थी, 62% की आपकी एफिशिएंसी हो, तो इनकी या हमारा जो थर कोल है वो 3-4 रुपए का आपका फ्यूल कास्ट है, ठीक है। सो आपने पहले वो compete सोलर या विंड नहीं करता था, ओनली ऑन द फ्यूल कंपोनेंट। अब वो जो $70 का टन था वो हो गया 470। वो जो $7 की आपकी RLNG थी वो चली गई अब 13-14 पे, जो भी कॉन्ट्रैक्टेड भी है स्पॉट हो गई 40 पे। सो नाउ सोलर ऑन इट्स ओन एज एन एनर्जी जो फ्यूल रिप्लेसमेंट के तौर पे अब वो एक्सेप्टेबल है और ये पहले कम्पीट नहीं करता। अभी ये 2 साल में ये जो सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन आया है, इसने इसको इस काबिल कर दिया, ठीक हो गया। सो इसलिए एज गवर्नमेंट दा हुण वस चले ते सवेरे 10,000 लवा दें, ठीक है जी। पहला ऐसे ही गवर्नमेंट ने सानू यह तोहफा दिता है, ओवर 12,000 मेगावाट इज योर बेस लोड इज ऑन इंपोर्टेड फ्यूल। तो थोड़ा बेस लोड पिछले मैं दसिया 10 सालों तो 7 तो नहीं वधिया, अपना उसको मार्जिनल कास्ट पे देना शुरू कर दो, ठीक है, ताकि वो मेरी कैपेसिटी पेमेंट जो खड़ी है, मतलब ये मेरी इंडस्ट्री चल पे तो उनको कैपेसिटी पेमेंट उनसे बाद में ले लो। मैंने यहाँ तक मशवरा दिया था, मैंने कहा आप क्या टैक्स इनको या तू अपना सामान बेच रहा, पैसे बाद दे दी। सो आपको असल में हम इन मिथ में चले जाते हैं। टोटल पंजाब की 5 डिस्कोस हैं, सोच लो पंजाब अपना IS को भी उसी में डाल लो, ऑलमोस्ट 100% रिकवरी। और आपके जो टेक्निकल सो कॉल्ड जो लॉसेस हैं वो 8 से 12-11%। कितना को 3 मार लोगे, 1% 2% इंप्रूव कर लो। बाकी आप आ जाओ KP और बलूचिस्तान और सिंध में, ठीक है, उनका साइज भी छोटा है। अब बलूचिस्तान 800 मेगावाट में डिमांड उसकी है 1200-1400 मेगावाट, लेकिन तुझे देनी नहीं क्योंकि बिजली नहीं है, बिल नहीं आना। सो दी ओवरऑल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, आल्दो वो आपका रिकवरी 36% है या 40% है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल इम्पैक्ट उतना नहीं है। सो ओवरऑल आपकी जो रिकवरी आपने जैसे 100 रुपया बिल दिया पूरे पाकिस्तान में, तो आपको 89 रुपए, तो 11 रुपए उठे गए, ठीक। अब वो तो लॉ एंड ऑर्डर उसका TND से कहानी तो अलग नहीं, वो तो और मसला। अब आप क्या करोगे, जो TND के जी लॉसेस बड़े डिस्ट्रीब्यूशन से, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं टोटल अगर आप उसके पूरे साल का 150 बिलियन रुपए नहीं बनता। 50 तीर मार लो, 50 कटा लो, तारा नमियां ला लो, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लो, एफिशिएंसी कनेक्शन ठीक कर लो, वो जो 500 रुपए उदी घरों देता है कैपेसिटी का, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ है? वो तो मैं प्लान च मैं तो मैं बिल्ट इन करता और आगे भी देना है, और आगे भी देना है। सो 1.3 ट्रिलियन 24 में हमने ये पाकिस्तान बंद करके घर चल जाओ, किसी और समुद्र च छाड़ ला लो। 1.13 बिलियन रुपए आपने कैपेसिटी पेमेंट देनी। सुनाओ अब हम क्या करें कि वो जो हमने इतना महंगे जो फ्यूल, अब हमारी किस्मत माड़ी, कोविड हो गया, 70 वाला कोल
गरीबी रोदे रखे दिन वड्डे आ गए, क्यों जी? ऐसे ही मिसाल है। तो हुआ ये वो जो क्लाइंट्स हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, अगर आप उनकी कभी बैठा हुआ है ना, वो मुगलिया सल्तनत का स्टाइल शहजादों वाला, वो नहीं निकलता। ये हमारा जो यूज़र है ना, जो बिल्डर है, जो यूज़र है, जो हाउस का ओनर है, जो बिल्डिंग्स का ओनर है, वो नहीं चाहता। वो कहते हैं जी, और मैं तो बार तो मैंने नहीं बनानी चीज़ें, मैंने तो ऐसे बनाना है। वो नहीं मानता आपकी बात। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ज़ीरो एनर्जी एक हमने बिल्डिंग डिज़ाइन की, ज़ीरो एनर्जी HVAC सिस्टम, नेचुरल वेंटिलेशन कूलिंग बिल्डिंग थी। हेडक्वार्टर बिल्डिंग है इसमें टाउनशिप में। वो हमने उसमें प्रिंसिपल इस्तेमाल किए। दरमियान वाला एक ओपन वेल था, उसको बतौर शूट जो एयर के जो प्रेशर डिफरेंस है उसको इस्तेमाल किया। एक नेचुरल फ्लो ऑफ एयर जो है उसको हमने वर्कआउट किया, सब कुछ किया। जो नॉर्थ जो साइड की जो एयर होती है अर्ली मॉर्निंग की, उसको इनटेक किया, बेसमेंट में उसको लेके गए। सारा दिन वो एयर जो थी वो ऊपर उठती गई, सप्लाई करती गई, कमरों में से घुसती गई, और वो नेचुरली हमने कहा जी टेम्परेचर डिफरेंस होगा। बिल्डिंग भी बन गई और ये सिस्टम भी बीच में इंट्रोड्यूस हुआ। पहले तो उन्होंने कहा जी ये जो चीज़ें हम डाल रहे हैं इसका खर्चा कितना होगा। बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया कि थोड़ा बहुत खर्चा है, लेकिन एयर कंडीशनर्स लगाने से तो कम खर्चा है, तो वो उन्होंने डाल दिया उसके अंदर। वो समर में वो नॉर्थ से हवा ले रहा था और उसमें विंटर में वो साउथ से हवा ले रहा था 12। और बड़े वेल नोन एक पार्टी है जिसका ये बिल्डिंग बनाई 14-5 मंजिला। 1-2 साल तो उन्होंने चलाया। फिर मैं एक दफ़ा गया तो उन्होंने फिर स्प्लिट यूनिट लगाए हुए थे। वो सिस्टम जो था वो चल रहा था, उसमें तकरीबन 10 डिग्री का फर्क पड़ रहा था। फिर उन्होंने स्प्लिट यूनिट लगाए थे। मैंने कहा जी आपने तो फिर हमने इतनी मेहनत की और हमने इतना काम किया, आपने खर्चा भी किया, आपने फिर स्प्लिट यूनिट लगाए। वो कहने लगे जी मज़ा नहीं आता बगैर स्प्लिट यूनिट बैठने मज़ा नहीं आता। जब तक ये स्प्लिट यूनिट ना हो तसल्ली नहीं होती। सो ये जो हमारी आदतें पड़ी हुई है, मैं आपको बताऊँ ना, जो यूज़र की आदतें पड़ी हुई है, हम मुगलिया शहजादों से कम नहीं है। हमारी आदतें बड़ी है, इससे बड़ी है, आदतें ख़राब है हमारी। और उसको आप जब तक आप उनको नहीं आप टच करेंगे, जो आपका यूज़र है बेसिक, उसका मिजाज ख़राब हो चुका है। उसका यूज़र का मिजाज है, उसको परवाह नहीं है। वो कहता है जी मुझे फ़िक्र है जहाँ मेरा है ये तेरा। वो ही डैम केयर्स। वो कहता है जी आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है नहीं करनी, आपने चार्जेस देने हैं नहीं देने, IPP को क्या करना, इट्स नॉट माई वरी। मुझे तो चाहिए 5 एयर कंडीशनर मुझे चाहिए, और चाहे कुछ भी हो मैं तो चलाऊँगा उसको। ये एक बड़ा मसला है। और इसी की वजह से जैसे डॉक्टर साहब ने दिखाया कि वो जो पीक लोड है 18,000 जो मेगावाट का जो कूलिंग लोड, फैन और AC, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो कि वहाँ बैठे हुए ऐशी कर रहे हैं और दे डोंट डैम केयर। देखिए ना, रूथलेस पीपल। वो तो एक सारे लेकिन है ना, अगर हमने वही मैं स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वो बाइलाज वो फिक्स हो जाएंगे ना कि बिल्डिंग इस तरह की डिजाइन होगी तो ये हो जाएगा। अगर हम वहाँ रेगुलेट करें जी, रेगुलेशन में जरा बेहतरी लाएं तो इंशाल्लाह ठीक हो सकता है। अच्छा, एक और सोलर में आज मेरा बिल जो आया था उसमें मैंने अभी भी लेस्को से 30,000 रुपया लेना है, एक पैसा नहीं दिया। पिछले ये 11वां महीना है, मुझे मैंने एक बिल का एक पैसा नहीं दिया। मियां सप्रेटेड इसलिए बड़ा हुआ। चौधरी फयाज अहमद खान, जो कि प्रिंसिपल स्पीकर हमारा ख्याल
चीजें बड़ी करना पड़ेगी। Now I request another speaker, Mr. Reem Ahmed Khan साहब, please. एक बार तो बड़ा हमारे प्लीज आपको तो ये वैसे बहुत है और बार पढ़ना बड़ा अलग अलग करते ये जो शेख साहब मेरा हल्ला हो गया रसगुल्ला को बैठे नहीं उठे बैठे ये पढ़ना भी है आप बुलाना इसके बाद आई रिक्वेस्ट सर यहाँ पे देखिएगा No, I think I. Now I invite the senior, our senior साथी कैंडिडेट, professional Mr. Naseem Qureshi, Mr. Destonian and Rabdas. Now I request Mr. Rizwan, the honorable member of the institution. Manager of this program. Request Mr. Gurai sahab to receive the book. यार हम लोग इधर पीछे जाने दो जी Thank you very much. Thank you very much. Sir, please, the lunch is ending. आप इधर आइए। शिकायत न कर सकेंगे। नहीं आप ऐसे नहीं इधर आइए। नहीं खाना खिलाना जरूर।